ओके, सो थैंक्स एवरीवन। अगर आप माइक ऑन रख सकते हो तो काफी अच्छा होगा, नहीं रख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरीबडी कैन सी एवरीवन हियर। आई पुट इट इन अ व्यू वेयर एवरीबडी कैन सी। तो जिसका वीडियो ऑन होगा वो सारे देख पाएंगे, जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा वो नहीं देख पाएंगे। या पाशी में Yeah. ठीक है। या सो Sir, नाउ I'm out of I'm going out of the house. So can I या close the या video कीप on? कीप की वीडियो एंड माइक ऑन, नो Keep प्रॉब्लम। video आपको अगर on. डाउट होगा Yeah. तो आप लिसनिंग मोड में रहो, कोई Yeah. इशू। Sure. Sure. ठीक है, Yeah. थैंक यू। Thank ओके, you. बाय। Now, see this session I've taken for three different grades, grade 5, grade 6 and grade 7. ओके, तो यहाँ पे मिक्स होगा, कोई ग्रेड 5 का होगा, ग्रेड मेजरली ग्रेड 6 टू ग्रेड 7 होगा यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे कोई 5 वाला है क्या? एनीबडी इन ग्रेड 5? या विच स्कूल योर चाइल्ड इज इन, सर? Sir, my son has just joined grade 5. He is in Dr. Pillai, Gorai. ओके, नाम क्या है आपके बच्चे का? Mayanch Manjara. महेश शुजरा, ओके। सो देन जो भी जितना लो ग्रेड है, it is beneficial for them, right? So I'll just give you an idea. Okay, I have taken three groups, making sure that because the concept is very same for everyone. Now lower the grade, better for it is, because जितना आप जल्दी उसको इस पे ग्रूम करोगे, ठीक है, उसको ज्यादा होगा। I don't know how many of you people know about the competitive exams. I am out the mood. Okay, no problem. Okay, ma'am, Dolly ma'am, thank you. सो जो आउट है, मार्केट में है, इफ दे आर एबल टू लिसन, आई एम हैप्पी। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो और फिर आप मार्केट में नहीं ऑन कर पा रहे हो, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉली मैम का मैसेज है कि शी इज आउट ऑफ द हाउस, सो शी विल नॉट बी एबल टू पुट द वीडियो ऑन एंड माइक ऑन, दो रेस्ट ऑफ देम कैन डू इट, विच इज गुड। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका बेनिफिट्स या एनीबडी हैज एनी आइडिया, थोड़ा भी? और कहाँ यूज हो सकता है, क्या कर सकते हैं, वाई वी शुड फोकस और वाई वी शुड नॉट डू इट? यू कैन ओपन द माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फ्री सेशन है, मतलब एकदम फ्री पे डिस्कस करो, कोई इशू नहीं है। बट ये मना कर रहा है ना, ये मना कर। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम मैम। सब शुभ मैम, ठीक है। अभी शुभ मेल का भी है मैम। आप मदर हो या फादर हो? शुभ फादर का नाम भी हो सकता है, शुभ मदर का भी नाम हो सकता है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। Sir, you were asking about competitive exams, right? Competitive exam, yeah. So which all Ah, competitive exams you know, and what all things, which all subject your child is giving, or they are appearing or they are not appearing? okay. So, sir, my son has been giving Silver Zone Olympiad for Okay, English, Science, Maths, and GK very good. since grade 2. Okay, And he's been giving IPM for maths for the last 3 years. very So, nice, yeah. very nice. तो you are on the right path. ठीक है, आप सिल्वर जोन भी ट्राई करो। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, Yes, yes. ठीक है, अगर आपको करकरेज मिलता है तो वो भी ट्राई करो आप। Okay. ठीक है, अगर मतलब सी, एज फार एज आई एम सेइंग, यू कांट गिव ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट सबका ओवरऑल ना प्रिपरेशन इज ऑल द सेम, मोर और लेस। ठीक है, सम टाइम इफ यू टेक IMO, आई जस्ट गिव यू ब्रॉड लेवल, जो दोज हु आर वेरी फेमिलियर विद ओलंपियाड्स, which is your SOF, which has a multiple layers, okay, which has a achiever section, which have a logical reasoning, which have a daily mathematics or logical mathematics. They were like, there are four levels, okay. Till grade 4 they have around 35 questions, and after that become 50 questions, okay, and it is different. But I usually prefer Karkares or maybe IPM is one of the thing, the reason being that, okay, there you don't have to involve any school level, मतलब you can independently apply, okay. In IMO, I personally feel that there is authenticity of this thing is very less, because by the time जब उनका, they have 3 days, usually they have it in October, November and December, although they have different sets, but even they conduct different exams at different levels. Matlab, even the tie-up is not there with the school.
they have a different timing all over the India. Somebody takes on Monday, somebody takes on Tuesday, somebody takes on Wednesday, and we said they will do, we don't know. Most probably ऐसा भी हो सकता है, if their parent has good network, so जो पेपर उसको देना है वो पेपर ऑलरेडी उसके पास है. There is possibility. But IPM में कर तो ऐसा नहीं होता है. All this silver zone, they have a single day exam. They have a single day exam. Correct. So the chances of fair exam now, I'll tell you why IPM. I'm following IPM for many decades now. In between they started with online, but now they've completely stopped online. They said that online they can participate, but you will not be given. They've kept the vigilance and everything, the cameras and everything. They were monitoring it very nicely also. But now they've decided that the same time student has to appear. Best part is that at the same time they have to appear, whether it is 11 o'clock offline or online. At the same time, anywhere in the world, if you are there, you have to appear. But that was done only the COVID phase for 2 years, 21, 22, I think 2-3 years they've done. Last year they've stopped it. Now, if you do online, I think this year they have completely stopped it. Last year they were allowing some of the areas, but now they have completely stopped online. Because I have student in Japan, I have student in UAE, Japan, Dubai, Singapore. Everybody wants to give. But they say, कि, sir, online you can give, but they will not be able to participate in the recognition. Well, they will give the certificate, but they will not be given any money prize or something like that because it is very difficult for us to monitor it. And that is why the authenticity is very high. Secondly, quality of papers are very good. It is something very high level. One level, so you should always assume that it will be one level up, IPM. And when you go to mega final, it is 2 level up because it happens usually in July. So by the time your next year bhi chalu ho jayega, second wala third mein aa jayega, third wala fourth mein, fourth and fifth, so and so forth. And it is something 2 level up. There are certain questions are very logically based. Okay, they have only 15 questions to give in mega final. But qualifying at mega final level also it's very tough. Not very tough, but it requires regular practice. It is not that tough. At least for lower grade, second, third, I can tell you it is not very tough. The level goes up. It gradually increases. When you go 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. 8th, 9 is too high. 8th, 9th up, you require knowledge of maths of 11th, 12th. Somewhere around 10th the minimum lagega. This is how it has to be very tough. You have to be very strong with the fractions, algebra, roots, powers, multiple roots. There are many things are available. So what I usually recommend, why I taken this only till 7th, I have not invited anybody from grade or grade 9. So there are 2 reasons I'll tell you. Those who are in lower grade, जैसे Maurice sir ने बोला कि he is giving from grade 2, he is doing excellent job. ठीक है, कि वो आप continue करें at least grade 7. If he is doing still better, if he wants to enjoy grade 8, grade 9 भी दो आप. ठीक है, IMO आप दे सकते हैं grade 8, 9, 10 में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब the level is usually at the school level थोड़ा सा ऊपर होता है. बहुत ज्यादा आपको, even if you see both the papers, you will be able to compare के which is better paper. I am sure you are joining as a father. आप भी पढ़ाते होंगे उसको, देयर इज नो डाउट. मतलब 99.9% मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मैथ्स इज फादर्स कप ऑफ टी. मदर्स होता है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिमिनिटिंग इट, बट यूजुअली वहां लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस होता है. इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सारी चीजें आप सिखाओ वहां पे. ठीक है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स फादर के पार्ट में आता है. And it is, I am saying it is 95% का कन्वर्जन होता है कि this is how it is usually. मतलब मेरी जो कनेक्शन भी होते हैं, सपोज आई एम कनेक्टेड टू 5000 पेरेंट्स, उसमें से 25 फादर भी नहीं होंगे. 475 mothers are connected to me. मतलब 4975. Only 25 fathers are connected. And they are very serious also. मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे है, बट वेरी रेयरली, मतलब 5% का रेशियो भी नहीं है कनेक्ट करने का. आई एम वेरी हैप्पी. आई फील वेरी हैप्पी व्हेन एनी फादर इज कनेक्टेड, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है. So that is how it is. So good part is, and I'll tell you why I usually recommend. See, all these sessions I usually conduct every year. I conduct these sessions for maybe every grade, and it is absolutely free. I don't charge anything for these sessions. The reason is being whatever I can communicate, and I send this recording also. Those who see this is okay, or they don't see it, it is okay.
reason is being ke any competitive exam, either it is English or science or your Humi Baba ho science ke liye, या you have this Karkares or IPM or IIM हो mathematics के लिए है. It is very important for any student to appear for these exams. I'll give you a couple of reasons. The thinking become very fast. The logical reasoning become very fast. The problem solving ability increases multifold. Now, if you tell me even if you are from Dhirubhai Ambani, even if you are from Ecomodel, even if you are for any of the best of the schools, Doon school se ho, if you tell me, sir, my child is scoring 90% or 95% or 80%, okay, I will not very much impressed whichever school you are, right? Because usually school set the paper on an average basis. However big school it is, whichever school it is, right? But he or she may be excellent or he or she may not be excellent, but I cannot judge because every school has their own curriculum, own way to take a exam. But if you tell me, sir, IIM, he is always or she is appearing, he is scoring or she is scoring. IPM always go for mega final. Mega final, they are doing gold medal, silver medal, or rank number 10 or 5 or 10, whatever it may be. I can give you point blank paper writing 19.99%. I'm just keeping 0.1%. He or she will be excellent in that subject. I'm talking about math right now, but he will be definitely 100% good in that particular subject. Matlab, if you take averagely, he will be definitely much above the peers, but definitely in that subject, he will be or she will be absolutely fantastic. The concept will be very good. Now, what exactly required for the competitive exam? Why I am facing? Because no, I am not affiliated with any IPM, IMO, SOF. मैं कोई registration मेरे यहाँ से करता नहीं हूँ. So I don't get a single penny from anyone. But I feel personally this is very important for anybody to get into this. And I'll give justification also why I feel so. Okay. Now, if you understand this, we'll start with a very simple thing. If your child wants to get into any of the professional courses, आप engineering ले लो, architect ले लो, lawyer ले लो, MBA ले लो, BBA ले लो, IIT ले लो, VJTI ले लो, anything you want to do it, they have to appear for competitive exam. They have to clear, irrespective board में whatever you are getting, okay, you have to have competitive exam done. 1 minute. Okay, clear. So they have to be very good at competitive. Now, first benefit of this is that if they are giving for 7, 8 years, okay, they will not have the fear to appear for the competitive exam. Okay. Either you go for CET or JEE, Advanced JEE, BIT-SAT, SAT, Pre-SAT. Okay. Any of the, even if you want to go for foreign institutions, anywhere you want to go, they have to have a qualifying exams. Without that, you will not be able to clear. Whether TOEFL हो, GRE हो, कुछ भी हो, right? India में तो possible ही नहीं है. If you want to go for any professional courses, हाँ, BCom, BSc करना है तो आपको नहीं लगेगा कोई, ठीक है? But if you want to go any professional courses, you have to enter, be it anything, any specialty, physiotherapy से लेके smallest one you would, the ratio or the margin. Like for example, if you want to go for physiotherapy or pharmacy or anything else, okay, you can have a different mark barrier. Okay, mark कट ऑफ दूसरा होता है. लाइक MBBS के लिए बहुत हाई कट ऑफ होता है, डेंटल के लिए उससे कम होता है, फिजियोथेरेपी से इससे कम होता है, आयुर्वेद के लिए उससे कम होता है. ऑल हैव टू गिव सिंगल एग्जाम विच इज नीट, बट कट ऑफ सबके लिए अलग अलग होता है. MBBS हाईएस्ट सेलिंग, तो उसका कट ऑफ सबसे ऊपर होता है, 700 के ऊपर उसका कट ऑफ चालू होता है, ठीक है? मतलब इफ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट, 700 के 720 द टोटल मार्क, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग बिलो 700, आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी. इफ यू गो टू 7, 650 और मतलब गुड कॉलेजेस. Similarly, if you go dental, then you have to go down. Again, you have to go physiotherapy. Again, you have to go down. I'm just giving one example. Okay, like for example, engineering के लिए JEE है. Okay, आपका lawyer के लिए है CALT है, right? So everywhere there's a competitive. If you want to go for a good colleges, you have to prepare for this, the competitive exams.
You have to stand out on this. Whether you are getting board में आपका 95 आया हो 98 आया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Doesn't matter. The competitor, all the evaluations are done on the basis of, they have many criteria. Hardly anybody reaches to the board level. Very rarely. Board level का कोई मायने नहीं है. Okay. But it does not mean कि you should ignore boards. Boards के अंदर minimum criteria होता है कि 65% आना चाहिए. So you should not even board. और कोविड के टाइम में तो हुआ भी था एक टाइम, जब जेई और ये नहीं हुआ था तो उनको बोर्ड के ऊपर एडमिशन मिला था. इट इज वन ऑफ द सिनेरियो, 1 in 100 years होगा ये. बट वी शुड नॉट इग्नोर के जेई के लिए प्रिपेयर करो, एडवांस जेई के लिए प्रिपेयर करो तो आप उसके लिए मत करो. ठीक है. नाउ एडवांस जेई के लिए अगेन यू हैव टू हैव अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. इफ यू स्कोर 93% कट ऑफ, 93 परसेंटाइल अगर आपका आता है जेई में, then only you qualify the JEE advance. Now this is very high level what I'm talking about, but as a level of 5th, 6th, 7th, I usually recommend earlier you start, it is better. Those who have sibling, right? Everybody is 4th, 5th, 6th, 7th में ही हो गए. जैसे मैम ने बताया, शैली मैम ने, उसकी एक डॉटर है 2nd ग्रेड में. तो those who have in lower grade, I usually recommend earlier you start. Even in grade 1, you should start doing it. IM होता है, IPM grade 2 से चालू होता है. You should always start doing it as soon as possible. And मेरा simple एक ही sentence होता है. If you preparing sincerely your child, yourself or through anybody help, okay, prepare only for competitive exam. आप स्कूल के लिए कोई भी बोर्ड, either CBSE, ICSE, state board, IGCSE, GCSE, IB board, any board you are having your child in, don't worry. At least till grade 7, you should never bother about any board. मेरे बोर्ड में ये आएगा, हमारे बोर्ड में ऐसा पूछते, हमारे बोर्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. If you prepare on this, I can 100% I'm sure, but I'm giving 1%, 0.1% as a chance that there will be possibility that your child will not be. मतलब आज तक तो मेरे को एक केस नहीं मिला है कि अगर those who are very good in IPM, very good in competitive exams, and they do very poorly in this thing, मतलब 95, 98% तो हवा में बिना प्रिपेयर करके आ जाता है. ठीक है. And because the level is very high. If you've seen every grade, I have sent my curriculum, my CCC batch. If you are not there, I'll send one more time. You just put it on the group. But mostly बहुत ज़्यादा मेरे changes होते नहीं उसमें. मतलब the parent hardly joins. There are 700, 800 parents every grade में होता है. They are same. So I put it. Maybe you have ignored it, or maybe you have not seen at that particular time. Group में है. You put it on the group. Whatever solution group you are there, I'll send the curriculum one more time. If you see, there is a highlighted. I have sent a mapping also for the IPM and IMO. If you see, there is a highlighted, blue color highlighted, which are the topic which are one level up. Every grade I have put it that, but it is not in the curriculum. And this curriculum, what I send, whatever topics I am sending you, I can challenge any grade, any board you take it. Okay, it will be superior than that. So reason is that what I usually recommend, those who are doing excellent with their own, but don't just for the sake of registering, don't register because IPM sir ने बोला है या किसी ने बोला है इसका बेटा दे रहा है, इसकी बेटी दे रही है. I will also register. Don't do that. At least grade 7, you should put a sincere effort and register. Suppose you are not doing, your child is not given up till now, any exam they have not given, still give it a try. Whether it is grade 5, grade 6 or grade 7, whatever you're there, just give it a try. Okay. If you want any help, any other details, okay, I'll send you the complete list. मेरे पास बहुत ज़्यादा competitive exam का list है. You can register whatever you like it. UIMO है, ठीक है, Unified Council है, ठीक है. There are many exams are there. I have sample papers of 1 or 2 also. Okay, there is a National Olympiad भी है, which is government, उसका papers नहीं मिलता है, ठीक है. So there are many things which are not available in the market, but majorly are there are available. जैसे IPM का मिल जाएगा आपको, IMO का तो बहुत फ्लोट हो रहा है. The sample papers ये वो बहुत मिलेगा आपको, ठीक है. Huge number it is available. So this is what my recommendation is. Okay, you should always try, even if your guide is grade 7. If you're not tried, if it is very weak, your child is very weak in math, उसको math अच्छा नहीं लगता है, then you should not try because it's a military training. ठीक है ना, काफी अच्छा होता है. अगर आपका बच्चा अगर 50-60% के अंदर आ रहा है और उसको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है मैथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ओनली मैथ,
I would not recommend you should try. Then you should focus only on improving his interest or her interest in the subject. ठीक है, आप उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे करो, आप 60% से 80, 80 से 90, 90 से आगे जाओ. ओनली ट्राई फॉर दैट. आफ्टर 8, मैम आर्यभट्ट का नहीं है, वही तो मैंने बताया ना, आर्यभट्ट का नहीं मिलता है पेपर. मैम ने एक जन ने लिखा है सर आर्यभट्ट का, मेरे पास एक सैंपल होगा तो मैं भेजता हूँ, ठीक है, बट आर्यभट्ट का मिलता नहीं है, पेपर अवेलेबल नहीं है. बट आई जस्ट चेक इफ आई हैव वन, आई सेंड इट टू यू. मेरे पास आई थिंक आर्यभट्ट का एक 6 या 7 का होगा, मेरे पास 2-3 पेपर है मेरे पास. आई सेंड यू, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है. आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सॉल्यूशन ग्रुप में, मैं सॉल्यूशन को यूजुअली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है. सो एनीबडी हैज एनी डाउट्स ऑन दिस, आप मैम ग्रुप में डाल दीजिए. चैट में शायद मेरे पास याद नहीं रहेगा, आप ग्रुप में डालोगे तो मैं उसके रिप्लाई में तुरंत भेज दूंगा. अगर मेरे पास होगा आई डेफिनेटली सेंड, बिकॉज मेरे को ये मालूम है आर्यभट्ट का नहीं मिलता पेपर. बाकी यूआईएमओ का मिल जाएगा आपको, यू विल गेट फॉर यूआईएमओ, यू आर गेट आईपीएम, आईएमओ का मिल जाएगा, आईपीएम का मिल जाएगा, वो सारा मिल जाएगा. ओके, ग्रेड 8 के बाद यूजुअली आई रेकमेंड दोज हु आर एक्सीलेंट. रेंचो जैसा है तो मैं बात करता हूँ कि आप ग्रेड 8 में भी दिलाओ या ग्रेड 9 में भी दिलाओ. Otherwise, I don't recommend to give them in grade 8, 9. If they're enjoying, you should give. If your child is enjoying in grade 8 and 9 or 10, you should give it. Because उसमें focus shift होता है, especially ICSE, CBSE और IGCSE. IGCSE में तो ये anybody is there from here? IGCSE से कोई है? Anybody is there IGCSE? या सब ICSE से है? My son is sir in IGCSE. IGCSE, राइट. लेकिन आपका भी 5th में आपके पास टाइम काफी है, Yeah. ठीक है. आप तो बिल्कुल मतलब आईजी के जो भी पेरेंट है, मैं उसको हाईली रेकमेंड करूंगा. आप तो ग्रेड 5 में है तो आप तो यू आर ऑन द राइट पाथ, एनी विच इज डूइंग फॉर 3 ग्रेड. कम से कम 7 तक मत छोड़ना, कम से कम 7 तक. एंड आईएमओ तो आप उसको 8, 9, 10 में दिला भी सकते हो, बिकॉज आईजी में देर आर सर्टन कंसेप्ट लाइक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ओके, percentage, there are certain type of currency conversions, there are certain types of what do you call simple interest, compound interest. They don't introduce till grade 8, grade 9. I don't know why. It is super lack. मतलब these are very important one. They don't have banking, they don't have anything interest या something, कुछ नहीं उनके पास. They don't have anything. They don't have taxation. Even till grade 10, they don't have taxation. ठीक है, दे डोंट हैव रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये जो आईसीएसई में काफी अच्छे से है उसके करिकुलम में. सो एटलीस्ट टिल ग्रेड 7, दोज हु आर इन आईजीसीएसई दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन आईसीएसई करिकुलम along with the current they are doing IGCSE, because IGCSE is little lower in lower grade. Higher grade में 8, 9, 10 में थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है. They have got good curriculum in 8, 9, 10, but उसके पहले it is very weak. मतलब बहुत simple होता है. And if you think your child scoring very nice in school, you are misled. So that is why if you do it in competitive exam, you will be in very good form, and he will do very good. मतलब competitive exam आपको फर्क पड़ता है, मतलब he is giving for 3 years. IP में qualify करता है सर मेगा फाइनल के लिए? मोनिश सर? हाँ सर. सो इस साल जो उसने दिया है, आई थिंक रिजल्ट्स अवेटेड है. ही इज हाँ. होपिंग टू क्वालिफाई. फर्स्ट ईयर में जब दिया था सर, ही हैड क्वालिफाइड. सेकेंड ईयर में ही जस्ट मिस्ड आउट बाय अ फ्यू मार्क्स. ओके, ठीक है. नहीं, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, अभी उससे 4th का दिया हुआ है. अभी फोर्थ का दिया. ही इज एक्सपेक्टिंग अराउंड अबाउट 78, 75. तो वी 75 आएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा. क्वालिफाई हो जाएगा. 30, 75 थोड़ा ऐसे, लेकिन 32 क्वेश्चन अगर राइट होते हैं आपके, तो 19% चांस है कि वो आप क्वालिफाई कर जाओगे. सी इट डिपेंड्स ऑन पेपर, इजी भी होता है कभी डिफिकल्ट भी होता है, तो दे डू अ परसेंटाइल बेसिस. सो इफ यू सी दैट एवरी ईयर देयर इज अ क्वालिफाइंग इज समवेयर 80, कोई 75 का होता है, किसी का 70 का होता है, किसी का 72 होता है, किसी का 68 भी होता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ एक्जेक्टली पेपर्स आर स्पैन.
ग्रेड वाइज उनकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चेंज होती है. सो हाउ दे आर डूइंग. सो आईपीएम के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आईएमओ का स्टैंडर्ड होता है, आईएमओ का कुछ नहीं होता है. आईएमओ इज सिंपल, उसका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, हर एक सिंपल चला जाता है. एंड क्वालिफाइंग इन आईएमओ इन सेकंड लेवल इज बिट इजियर कंपेयर टू द आईपीएम. ठीक है. सो ये अगर आप ट्राई करो एंड इफ यू आर टीचिंग हिम, आई एम हैप्पी. आप उसको बिल्कुल उसी में फोकस करो. आप स्कूल में भी ऐसे पिल्लई में, मेरे पास ज्यादा अच्छे रिव्यू नहीं है उसके. अच्छा. ठीक है. बट आई डोंट हैव एनी पर्सनल दिस थिंग. बट जो मेरे स्टूडेंट जो मैंने इवेल्यूट किया, सपोज मैं 10 स्टूडेंट इवेल्यूट करता हूँ हर एक स्कूल से. ठीक है. सो आई गेट टू नो के स्कूल की इम्प्रेशन क्या आती है. ठीक है. सो बट इट इज नॉट दैट इट इज, मतलब हर एक जगह पे आपको एवरीवेयर प्रो इज ब्लैक. Correct. ठीक है. अब आपकी वाइफ भी आपसे झगड़ती है, मेरी वाइफ भी मेरे से झगड़ती है. ठीक है. तो उसमें कोई फर्क नहीं. एवरी स्कूल विल हैव सम गुड टीचर्स, सम बैड टीचर्स, सम गुड मैनेजमेंट, सम बैड. सो एवरी प्लस एंड माइनस देयर, अनलेस यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन. आप उसको कंटिन्यू करो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट. बट आपको जहां लगता है कि एक बार पानी सर के ऊपर जा रहा है, देन ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑप्शंस. अदरवाइज एज फार एज यू आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको ज्यादा मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम आएगा. So anybody wants to have some idea about any other things, or you want to see how to prepare? Okay, then I'll go to the next level. Okay, how to prepare. जो मैंने एक बार ब्रीफ में मैंने पहले बताया था कि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. अच्छा, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश. एनीबडी नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, देन आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश. आई थिंक. Sir, it's fine. हाँ, ओके. क्योंकि यहाँ पे मेरे को सरनेम से और नाम से तो लग रहा है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. Yeah. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में रह के आई हैव टू आस्क वेदर एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी और नॉट. इनफैक्ट मेरे को उल्टा पूछना चाहिए कि सब लोग को इंग्लिश आती है नहीं आती है. Correct. लेकिन मेरे को हिंदी हिंदी के लिए पूछना पड़ रहा है. ठीक है. सो द वे इट स्टार्ट्स. ओके, I'll tell you what pattern I follow, so you can follow the same pattern. You are teaching your child. Make sure that you have timetable. In a day, in a week, you decide Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. आपको जो decide करना. It has to be done. Study on that particular day, particular time. एक आध दिन ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, बर्थडे है, पार्टी है, बट मेक श्योर दैट यू मॉनिटर दिस एंड राइट दिस इन अ पेपर, मेकिंग श्योर दैट यू डोंट, मतलब इट इज केस विथ मी बिकॉज आई एम अ ट्यूटर एज वेल आई एम अ पेरेंट ऑल्सो. मेरी बेटी मेरे साथ पढ़ने को मना करती है. ठीक है. तो आपको भी ये आएगा, अभी नहीं ना, थोड़ी देर में आ जाएगा, राइट. बट इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर, माय आइडिया इज दैट के एट लोअर लेवल टिल ग्रेड 6-7 यू कैन, आप उसको मोल्ड कर सकते हो. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे मोनिश सर के पास अच्छा टाइम है, आप मोल्ड कर सकते हो. फॉर शैली मैम, फॉर यंगर वन, शी हैज अ गुड टाइम, शी कैन मोल्ड. बट एक साल में जब 3 में चले जाएंगे, 8th में आपके पास मोल्ड करना 19.9% आप नहीं कर पाओगे उसको. Sir, your voice is cracking. Sir, your voice is cracking. Clearly सुनाई. No, sir, it is the same. Voice is breaking a bit.
I don't know what is the case with others. Are you able to hear? No, sir, it's still cracking. Now Zoom has. Now is it audible now? I've closed Yes, all the sir. applications. Yeah, sir. Yes, better than before. Yes. Yeah. Okay. ठीक है नहीं Zoom क्या होता है Zoom takes lot of resources. Recently I've escalated many times. I'm using Zoom for last 5-6 years now. But अभी recently मालूम है they don't have any lighter version. It takes lot of resources. So sometimes it hardly for a minute or so it little hangs. आपके बाद में वो ठीक हो जाता है. रिसोर्स लेता है बहुत सारा मेमोरी और ये ले लेता है. Unfortunately I was in IT. So ये सारी चीजें मेरे को समझ में आती है. तो अभी बोलते हैं ना कभी कभी बहुत जानकारी भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है. So it takes a lot of resources. So I escalated at many level Zoom पे. Okay, product is good, but you should work on the resource utilization. Yeah, so I am able to now. ठीक है. So when you start coming back to the planning, आप जब करो उसको planning में, you should start with the basic time management. The main you help them with the time. Okay. Normally parents क्या करते हैं उसको सिखाना वो अपनी जिम्मेदारी पकड़ लेते हैं. This is my responsibility. करेक्ट ऐसे कि इफ आई वांट टू टीच माय डॉटर और माय सन जैसे मोनिश सर को बताएगा मोनिश सर बोलेगा इसको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक द ओनस ऑन यू दे विल बी रिलैक्स करेक्ट यू पुट ओनस ऑन देम कि आई एम टीचिंग यू समथिंग यू फील एवरी डाउट यू सॉल्व दिस आई टीच यू द कंसेप्ट ट्राई प्रैक्टिस योरसेल्फ यू कम विद द डाउट्स and make sure that they plan it accordingly and review it after every week okay maybe Saturday Sunday when you have off बताओ कि मैंने तुमको इतना दिया था कितना किया टास्क लिस्ट आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट बी अदर कॉर्पोरेट समवन अदर वर्किंग राइट कीप अ टास्क लिस्ट कि ये खत्म किया ये खत्म किया ये खत्म किया ये खत्म किया नहीं किया ठीक है एंड मेक इट अ श्योर दैट यू रिकग्नाइज विथ अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपने अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड दो 4 आदमी को बोलो घर में डिस्कस करो कि मेरे बच्चे ने अच्छा किया है अजय ने विजय ने जो भी नाम है उनका ठीक है अच्छा किया है ठीक है एंड पड़ोसी को बोलो ओके सेलिब्रेट करो आप ऐसे भी रेस्टोरेंट में जाते हो महीने में 1-2 बार तो जाते होंगे आप बोलो कि लेट्स सेलिब्रेट हिज सक्सेस राइट कि उसे अच्छे से बिहेवियर अच्छा किया उसका टास्क सब कंप्लीट हुआ ठीक है अगर वहां पे आपको कोई मिल जाता है तो उसको बोलो कि दिस इज व्हाट एक्जेक्टली वी हैव डन व्हाई वी हैव कम हियर मेक श्योर दैट ही हियर्स दिस पर्टिकुलर थिंग और शी हियर्स दैट राइट अदरवाइज और जब नहीं देता है खाना बंद करो एक दिन के लिए और ऐसी सब्जी बनाओ जो उसको पसंद नहीं बिल्कुल ठीक है सुबह 7 बजे उठाओ सैटरडे के दिन उसको ज्यादा सोने को चाहिए तो बोलो 7 बजे हमारी क्लास होगी जो यूजुअली मैं मेरे क्लास में करता हूँ दोज हू डोंट फिनिश असाइनमेंट उसके लिए मेरा सुबह 7 बजे क्लास होता है सैटरडे संडे को ठीक है मेरे को तकलीफ होती है लेकिन उनको भी तकलीफ होती है तो बच्चा करके जल्दी खत्म करके आ जाता है ठीक है कि मेरे को ये जाना नहीं पड़े एंड गिव देम इनफ टाइम सो गिव देम द टाइम 1 महीना 10 दिन 15 दिन आप गो कि अभी तक खत्म करोगे ओके टाइम लाइन लिखो लेट देम साइन लेट देम टेक द ओनरशिप बोला तूने साइन किया था ठीक है एंड आई डन दिस विथ माई डॉटर्स एंड इट इज वर्क्स एंड 90% जितना भी मैंने किया है 90% ऑफ द केसेस इफ आई 100 स्टूडेंट इफ आई 20 स्टूडेंट तो आउट ऑफ 20 स्टूडेंट 16-17 तो इससे सुधर जाते हैं दे डोंट कम अब मेरे पास एक क्लासिक एग्जांपल है 3rd ग्रेड की बच्ची है ठीक है उसकी बड़ी सिस्टर है 10th में वो मेरे साथ है ठीक है 3rd ग्रेड की बच्ची को मैंने बोला कि मैम आप इसको ना अपना बैग पैक करो मेरे घर पे छोड़ के जाओ एक दिन उसकी मम्मी पहले उसको लगा था कि टाइम पास हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है एक दिन उसने बिल्कुल बैग पैक किया पाँव में गिर गया मम्मी मत करो प्लीज मेरे को सर के पास नहीं जाना है मैं जो भी बोलोगे करेंगे अब बोलते आज मैंने उसको पूछा कि आप प्रैक्टिस बोला मेरे को रोज याद दिलाती है कि सर मेरे को टेबल का प्रैक्टिस करना है मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस 3rd ग्रेड में बोला कि वो मेरे को रोज याद दिलाती है कि उसको मालूम है कि नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा बोले मेरे पास टाइम नहीं है सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन दे टेक ओनर्स ऑन देमसेल्फ ओके ये सारी चीजें ठीक हो जाती है करेक्ट सो मेक देम श्योर दैट वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग ले अपनी खुद की ओनरशिप ले तब वो आपको बिल्कुल मतलब आपका बच्चा फिर वो कुछ करे वो सही लाइन पे है और जब अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएगा अपनी खुद की स्टडी खुद मैनेज करना सीख जाएगा
और करते हैं, ऐसे नहीं है। देखो, दे आर द मोस्ट स्मार्ट जनरेशन। मैंने ये देखा है, मेरे पिताजी से हमारी जनरेशन स्मार्ट है, हमसे हमारे बच्चे स्मार्ट है, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, वो उससे स्मार्ट होंगे। ठीक है, मतलब जो आज 15, 17, 20 साल में बच्चे कर सकते थे, हमको समझ में भी नहीं आता था क्या करना था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज इंस्टाग्राम मेरी डॉटर जो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो दे आर इवन स्मार्टर, दे कैन डू। और इसकी कोई क्लासेस नहीं चलते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके यूट्यूब, उसका वीडियो बनाने का, उसकी कोई क्लासेस उससे नहीं गए, लेकिन फिर भी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं वो लोग। ठीक है, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो दे आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल द थिंग्स। इफ दे डू इट, यू कैन बी एश्योर्ड कि योर चाइल्ड इज इन गुड पाथ। ठीक है, आपको अगर कुछ इसका क्वेश्चन है। हाय बेटा, हाउ आर यू? क्या नाम है? Hello. Say your name. Priya. हाँ, फ्रेया। Say loud. Priya. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू नीड एनी हेल्प, यू लेट मी नो। Sir, I had a question. Obviously, you would know because math is your specialization. और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट्स आपको आते हो तो भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन आता है तो भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी जो भी थियरी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, कोई ना कोई तरीके से आप दिमाग में रजिस्टर करके उसको राइट ला सकते हो कि ये सिनेरियो में यही होता है, उसका कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है। करेक्ट। तो मैथ्स में सर आप जैसे जैसे आप कितने भी टाइम से प्रिपेयर करो, व्हेन यू गेट क्लोजर टू द एग्जाम डेट, करेक्ट। व्हाट शुड यू फोकस मोर ऑन? कंसेप्ट आप रिवाइज कराओ कि कैलकुलेशन? बिकॉज बच्चा कभी कंसेप्ट सही लाता है तो कैलकुलेशन रॉन्ग कर लेता है। करेक्ट, करेक्ट। सी, आपने कभी भी कोई भी मेरे क्लासेस ज्वाइन किए होंगे या फिर कोई भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैं यूजुअली बोलता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट कम, मैं हमेशा बोलता हूँ, कैलकुलेशन इज बेसिकली 10% ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन, वंस यू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स एंड रूट्स, आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है उसमें कुछ। द ओनली 6 ऑपरेशन, उसके आगे कुछ नहीं है। इफ यू नो 1 डिजिट बाय 1 डिजिट एडिशन, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीजन, आपको इट इज जस्ट एन हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आपको हुआ क्या, कभी एक पैर आ गया, कभी एक पाँव आ गया, कभी एक आंख आ गया। जब भगवान ने आपको बनाया था, आपने जो दिया है वो सिर्फ ग्रो हो रहा है। करेक्ट। आपके आईज बहुत बड़े हो रहे हैं, आपके दांत आ गए, ठीक है, आपके ईयर्स आ गए, ईयर्स बड़े हो गए, आईज बड़े हो गए, नाक बड़ा हो गया, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़ा। बट नथिंग न्यू, मतलब तीसरी आंख आई शंकर भगवान की तरह, ऐसे नहीं होता है। सिमिलरली, इफ यू नो द ऑपरेशंस, ओके, मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ, मतलब मेरी कोई भी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आप सिर्फ उसको पूछ लोगे तू इसमें क्या करेगा, हाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड, यू विल सब्ट्रैक्ट, व्हाट फ्लो यू विल फॉलो। अगर जहां पे उसने फ्लो ठीक बोल दिया, उसके बाद उसको छोड़ दो, बिकॉज कैलकुलेशन एरर, आप प्रैक्टिस कराओ उसको। ग्रेड 5 में आपके पास फिर भी ऑप्शन है, आप इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन आप कराओ। ग्रेड 7 में आपके पास स्कोप नहीं है। आप बोलेगा कि मेरे को फ्रैक्शन नहीं आ रहा है ग्रेड 7 के लिए, अगर मेरे को चाहिए, मेरी लीनियर इक्वेशन की एक शीट है, मैं ग्रेड 7 में जो भी है मैं भेजूंगा आपको। अगर ग्रेड 7 के बच्चे ने अगर वो कर लिया, तो आप समझ लो उसको एलजेब्रा में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, ओके, मिक्स फ्रैक्शन है, सब कुछ मिक्स है। और उसके आंसर आएगा ना वेरिएबल, जब लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, उसका आंसर आएगा 4/29, 1/3/7, -1/9, ऐसे सब आंसर आते हैं। इट इज वियर्ड आंसर्स। इट इज नॉट दैट कि आपको x=2 आएगा, x=-2 आएगा, लेकिन कंसेप्ट में पूरा है। अगर 35 क्वेश्चंस के अंदर अगर 35 क्वेश्चंस ये आपने बच्चे ने कर लिया, तो आप समझ लो उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन में उसको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। So make sure that you give certain complexity, something like this, and that is why I highly advocate this kind of competitive exam. कि उसमें एक लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 6, 7 के लिए बोलूँ, 5th के लिए थोड़ा सा, बट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं एज अ कंसेप्ट, जैसे आपने कैलकुलेशन बताया, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताऊं, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका 7th वाला है, हाँ, उसको पूछो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। उसको कंपाउंड इंटरेस्ट शायद 6 में आया होगा, नहीं आया होगा, आई डोंट नो। No, व्हाट इज sir. कंपाउंड इंटरेस्ट? They have not started with compound interest and all yet. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्या होता है, चलो
एक पेरेंट एज ए पेरेंट पूछता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एज ए कंसेप्ट क्या है? It is a multiple type of interest what we like for purchasing or something, or if we take something on interest पे interest जो चढ़ता है that is compound. करेक्ट, अभी आपने सही जवाब बोला, इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट. कंपाउंड इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. Yes. अब दूसरा क्वेश्चन पूछा हूँ, हाउ द कंसेप्ट वर्क्स, राइट? अब फॉर एग्जांपल आई एम अ शॉपकीपर, राइट? मेरी एक होटल है, बहुत बड़ी होटल है, ठीक है? आई एम गिविंग एग्जांपल. इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, ठीक है, अब मेरी बर्थडे आ रही है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, मेरी बर्थडे आ रही है, ठीक है? मैंने ब्रांड पार्टी रखी, मेरा 50 इयर्स कंप्लीट, मेरे डैडी के 90 इयर्स, ठीक है? तो मैं ब्रांड पार्टी में, डैडी का अभी 89 हुआ, तो मैं नेक्स्ट ईयर रखूंगा. तो बोला कि 90 इयर्स की मैंने पार्टी रखी है, तो मेरे होटल में, रेस्टोरेंट में जो भी खाना आएगा ना, उसको 50% डिस्काउंट, ठीक है? अच्छा, अगर आप मेरे कम्युनिटी में हो, आप मेरे स्टूडेंट के पेरेंट हो, जो मेरा स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो आपको 30% और डिस्काउंट, ठीक है? अगर आप ग्रुप ऑफ 10, 15, 20 में आते हो, तो आपको 30% और डिस्काउंट. तो पहले 50 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर चलो मैं थोड़ा नाम अलग ले लो, 25 ले लो, राइट? ठीक है? और अगर आप बोरीले से हो तो 10% और डिस्काउंट होता है, ठीक है? करेक्ट. हाँ, तो आपका समझा. टोटल डिस्काउंट कितना? 50 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 10 हो गया. अब मैं ऑप्शन आपको देता हूं, ठीक है? आपका बिल 10,000 हुआ या 50,000 हुआ, लाख हुआ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पैसा देना पड़ेगा या मेरे को देना पड़ेगा आपको? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. No, sir, because after 50% का जो भी अभी अभी आता हूँ, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लो, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर आई हैव टू गिव मनी और यू विल गिव मी मनी, ठीक है? फर्स्ट पार्ट. सेकेंडली, कि आपके पास चॉइस है, यू हैव अ चॉइस, कि आपको जो डिस्काउंट पहले लगाना ना, आप पहले लगा सकते हो. आपको 50% पे लगाना है, 50% लगाना, 10% लगाना, 10% लगा सकते हो, ठीक है? आपको जो डिस्काउंट आपको पहले लगाना है, आप पहले लगाओ उसको, ठीक है? एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पे द लोएस्ट. इवन इफ यू पे, यू हैव टू पे द लोएस्ट, और इफ आई पे, आई हैव टू पे यू हाईएस्ट. ओके. अब बताइए, अब क्या ऑर्डर में आप लगाओगे? एक 50%, एक 30%, एक 25%, एक 10%. आप अगर टोटल करोगे उसका, तो इट विल गो 115%. करेक्ट. ठीक है? अब आप बताइए कि आप बोलोगे मैं दूंगा या आप दोगे? तो ऊपर से तो कैश कोई देगा नहीं, लेकिन ये कॉमन सेंस बोलता है, राइट? हाँ, ये कॉमन सेंस बोलता है. ऑब्वियस है कि अपना जो समझो फर्स्ट वॉज 50%, so after deducting the 50 from that amount, बाकी जो बचा है वो इंटरेस्ट के ऊपर 30 जो भी 25, करेक्ट, वो वैसे कैलकुलेट होगा, राइट? हाँ. पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया. यस. तो आपका जो इसको बोलते हैं कंपाउंड परसेंटेज, यस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा भाई है. करेक्ट. 100 के नीचे डिस्काउंट होता है, तो ये इसका उल्टा भाई है. अब ये बताइए कि आप ऑर्डर पे कौन सा लगाओगे? ऑर्डर पे मींस जो फाइनल फर्स्ट बिल है उस पे 4% अलग अलग परसेंट है ना, 50%, 30%, 25%, 10%. आपको 50% से 10% पे आओगे, या 10% से 50% पे जाओगे, या 25 से 30 पे लगाओगे, फिर 10, फिर 50, या किस ऑर्डर में लगाओगे? सर हाईएस्ट से ही लोएस्ट पे आएंगे. पक्का? हाँ. मींस ऑन दैट रिमेनिंग अमाउंट आई एम सेइंग. हाँ, रिमेनिंग अमाउंट में. हाँ. करेक्ट. मैं आपको अगर रिमेनिंग अमाउंट से जाना है ना, तो फिर डिसेंडिंग करना पड़ेगा. पहले 10 ले लो, बचा हुआ पे इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बराबर है. अगर मैं बोलता हूँ कि मैम नहीं, आपको अलाउड नहीं है, हाँ. मैं होटल का ओनर हूँ, मैंने रखा है, आपको 10 से 50 तक जाना पड़ेगा. हाँ. तो आप फाइट करोगे कि नहीं? आपने ऐसा तो बोला है मेरे को, आप फाइट करोगे मेरे से? नहीं, whatever is we are getting is fine. नहीं, आपका तो हक है ना, आपको कस्टमर हो. हाँ. आपका तो हक है. हाँ. ठीक है? आपके पास कैलकुलेटर है? मोबाइल में ही अभी तो हैंडी. हाँ, ठीक है. हाँ, है. ऑर्डर मैटर नहीं करना और चाहिए. तुमको आइडिया है तो मैं तुमको बताता हूँ कौन से ऑर्डर में उसको लगाना चाहिए. ओके. नहीं सर, है कैलसी, मैंने सेकंड मोबाइल से ऑन किया. सर ऑर्डर मैटर करना नहीं चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? वेरी गुड. अब ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता है?
बच्चों को आई थिंक सेकेंड या थर्ड में था, जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं कि आप कहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। आंसर सेम ही आएगा, वैसा टाइप। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप क्या कर रहे हो? यू आर मल्टीप्लाइंग, हर एक चीज को आप बैलेंस रख के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 करो, या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 3 करो, 4 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा, बिकॉज इट इज कम्पिटिटिव इन हम्म नेचर। हम्म तो आप अगर 50% लगाओ, 10% लगाओ, 25 लगाओ, 30 लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई भी ऑर्डर में लगाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई टेल यू वेरी फनी। अब जब मैथमेटिक्स कब काम आता है, एक बार मैं ग्रैंड हयात में या फिर और कोई अच्छी होटल में हम हमारे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे 3 दिन पहले, 3 साल पहले, कोविड के बाद। तो उसने बोला कि सर आपकी मेंबरशिप लेनी है, 8,000 ये है, फिर आपका डिस्काउंट करके ये आएगा, फिर जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, और फिर ये होगा, ठीक है। अब मेरे को तो लेना नहीं था मेंबरशिप। बोला कि नहीं सर, ये तो आपका डिस्काउंट पहले लगा रहे तो मेरे को डिस्काउंट कम मिलेगा, और फिर आप उसके ऊपर जीएसटी लगाओ तो मेरे को ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। बोला आपके मैनेजर से पूछो, ठीक है, आप जीएसटी पहले लगाओ और फिर मेरे को डिस्काउंट दो, ठीक है, तो मेरे को बड़ा वैल्यू पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो बोलता है कि सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मिला आप पूछ के तो देखो एक बार। अब मेरी बेटी बारी में बैठ रही, पापा क्या टाइम पास कर रहे हो? बोला आपको नहीं लेना, मना कर दो। बोला ठीक है तेरे को बताऊंगा, तू एक काम करो, वो क्यों नहीं बोल रहा है मेरे को? बोला तू आप ऐसे प्रोसेस क्यों घुमा रहे हो? मेरी मर्जी है, मैं कस्टमर हूँ, मैं घुमा सकता हूँ प्रोसेस। तो उसे जाके मैनेजर को पूछ के आया, बोला नहीं सर यही प्रोसेस है, हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, हम इसको नहीं कर सकते। बोला ठीक है चलो, तो सर मैं नहीं ले सकता हूँ। करेक्ट, अगर वो मान जाता तो मेरे को 10,000 का वहां पे स्वाइप करना पड़ता, मेरे को लेना पड़ता वो। लेकिन दोनों केस में ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले जीएसटी लगाओ फिर डिस्काउंट लगाओ, डिस्काउंट लगाओ फिर जीएसटी लगाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी बेटी को बाहर आके पूछा, बोला तू क्यों मना कर रही थी, क्या है? बोला आप पापा उसकी कंपनी की प्रोसेस कैसे चेंज कर सकते हो, आप इतनी बड़ी 5 स्टार होटल में से हो। बोला तू एक काम कर, 10,000 का उसका बिल, 8,000 की उसकी मेंबरशिप दी, उसमें 18% जीएसटी लगा, उसमें 20% मेरे को, ये 30% डिस्काउंट दे रहा था, तू कैलकुलेट करके आया। तो उसे कैलकुलेट किया, बोला पहले वो डिस्काउंट दे रहा था, बोला पहले उससे जो प्रोसेस किया उसका कर। दोनों में आंसर सेम आया। बोला अभी बता मैंने क्या गलत पूछा था उसको? बोला हाँ ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। बोला शर्म करने वाला, तू अभी ऑलरेडी 8 में आ गई है, अगर तू मीन्स मेरी मेरी कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, इट्स ऑल सेम। तो ये क्या था कि दिस इज हाउ, व्हेन यू आर गुड इनफ, यू स्मार्ट इनफ, यू ट्राई टू फिल्टर आउट के उसको हम बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करेक्ट सोचते नहीं है, जैसे आपने बोला। अब आपका ही फंडा क्लियर हो गया, सर का फंडा क्लियर था, ठीक है, करेक्ट। कि उसको ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी तक बताया, जबकि प्रॉपर्टी 6 ग्रेड में आएगी। आपका सर एक ही बेटा है। सर डॉटर भी है, वो नर्सरी में। हाँ तो होता, लेकिन अभी तो 6 ग्रेड में आया नहीं ना। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बोल रहे हो, इट इज ग्रेड 6 में है, करेक्ट। लेकिन आपको अभी तक सर याद है, विच इज वेरी गुड। सर बचपन से थोड़ा पैशन रहा है मैथ्स का। सर सो वो जब ये ना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो डेली नंबर से थोड़ा बहुत खेलता हूँ तो। वेरी गुड, फिर तो फिर आपको मतलब, आप तो द्वारका में बैठे हो और कृष्ण के भक्त हो, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ठीक है, सो करेक्ट है, सी दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड के ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो ना, सर कैलकुलेशन पे फोकस मत करो, उनको फोकस कराओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पूछता हूँ, एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इवन एवरीबडी नोज, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इट टुमारो, जब मैं करूंगा ना मैं ये बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं ऑड प्लस ऑड क्या होता है, आपको फटाक से आंसर देना है। ऑड प्लस ऑड होगा इवन। इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड होगा। हाँ अच्छा। ऑड ऑड हाँ, सोचना पड़ता है, राइट? ऑड सोचना माइनस पड़ेगा। इवन, इवन माइनस ऑड, ऑड प्लस इवन, इवन प्लस ऑड। ये तो अभी जब मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, हम्म, ठीक है, लेकिन अब जब मल्टीपल नंबर लूंगा, ऑड प्लस इवन प्लस ऑड प्लस इवन प्लस इवन माइनस ऑड माइनस इवन प्लस ऑड, आपको फटाक से जब तक मैं खत्म करूं, आपको उसका आंसर देना है। और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है इफ यू नो द कंसेप्ट। और इसमें मैं, क्योंकि आपको अभी मैं एक थोड़ा सा दोनों का इंटरेस्ट है, तो मैं ये बता रहा हूँ, आपको सिंपल करना है, उसका एक लॉजिक है। मैंने इसको फैमिली में एज ए स्टोरी बनाया है, ठीक है, मेरी हर एक कंसेप्ट पे एक स्टोरी होती है, ठीक है। मैं नॉर्मली बच्चों को क्या जल्दी समझ में आता है, फैमिली, बिकॉज दे आर सराउंडेड विद द फैमिली। आप बोलो कि मैंने बनाया ऑड, बोला घर में किसका चलता है, ठीक है, सर भी बाजू बैठे हैं, मैं भी हूं, आप भी है, ठीक है,
घर किससे चलता है, घर में राज किसका चलता है? हम भले बोल सकते हैं हमारा, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, एक आध जन बच्चा बोल देता है कि पापा का चलता है, मतलब कोई नहीं चलता, पापा खाली सैलरी दे दे। फिर डिसाइड मम्मी करती है कि होता क्या है, राइट? सो मम्मी डिसाइड करती है कि क्या है। तो यहाँ पे और जो है ना वो आपकी मम्मी है, इवन है वो तुम्हारे पापा है। आप इवन जितना डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोला ये तुम्हारे पापा है, दादा है, अंकल है, मामा है, मासा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसाइड करेगा मम्मी, नानी, दादी, मासी, मामी, ये सब डिसाइड करेंगे ये होता क्या है। ठीक है, देन वो से कि जब एक आ जाएगा तो आप जितने ऑड काउंट है, अगर तुम्हारे ऑड नंबर के ऑड काउंट है तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। और जब उसके इवन काउंट हो गए, बिकॉज ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है। तो जब आप प्लस एंड माइनस होता है तो आपको जब हमेशा ऑड होगा, ऑड नंबर के ऑड काउंट होगा, आप जितना कर लो तो उसके अंदर आंसर हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, और ये मेरे सेकंड और थर्ड ग्रेड के बच्चे सीखते हैं। दिस आई टीज देम इन सेकंड ग्रेड। और बड़ा लंबा सा मैं खाली करता हूँ, क्या ओ और ई लिखना है मेरे को, एंड देन आई से काउंट हाउ मेनी ऑड्स आर देयर। इफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग गोज इन देयर माइंड, नंबर विदाउट नंबर्स, लर्निंग मैथ विदाउट नंबर, विच इज द फन। जैसे अभी सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में चलती है। अब मल्टीप्लीकेशन में आप बोला हूं कि आपका ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, अभी इवन इंटू ऑड, ये आपका क्या होगा? रिपीटेड एडिशन। नहीं, रिपीटेड एडिशन है लेकिन नंबर अलग अलग है ना, ऑड अच्छा, इवन ओके। मिक्सचर है। तब क्या होगा? ये भी गलत है, ऑड रिपीटेड एडिशन भी गलत है। ऑड ऑड ही आएगा ना, मतलब ऑड इंटू ऑड करेंगे तो मतलब दिस। अभी मैंने क्या पहले स्टोरी बताई थी, मम्मी का चलता है। करेक्ट। ठीक है, बोलता है जब किटी पार्टी हो रही, पप्पा आते हैं एक बार, पप्पा बोले क्या नॉनसेंस है, बंद करो। ठीक है, तो 100 सुनार की एक लुहार की होती है। इवन पापा है, अब आप जब मल्टीप्लाई करो सारे ऑड है, आंसर ऑड में रहेगा। जहां एक इवन आ गया तुम्हारा आंसर इवन हो जाता है। इवन हो जाएगा। ओनली वन इवन इज सफिशिएंट टू मेक एवरीथिंग इवन। सिमिलरली इफ यू गो टू डिवीजन, आपको इवन कैन बी डिवाइडेड बाय ऑड कैन बी डिवाइडेड बाय ऑड, इवन कैन बी डिवाइडेड बाय ऑड, बट ऑड कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय इवन। कोई भी ऑड आपको डिवाइड कर ही सकता है इवन से। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है, बहुत सिंपल है। जैसे अभी क्योंकि हायर ग्रेड में और एक एग्जांपल, मतलब ऐसे लाइफ टाइम मतलब हम 8-10 बजे तक चलते रहेंगे, बट आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। ओके, मैं एक चीज, मैं दो चीजें, सपोज आई हैव टू फोन्स लाइक दिस, राइट? आई हैव टू फोन्स, राइट? दोनों सेम ब्रांड के हैं, मतलब सेम है। मैं दोनों को ना, सेम ब्रांड के अलग अलग भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आई एम सेलिंग बोथ एट द सेम प्राइस। In this, I am making 20% loss, and in this, I am making 20% profit. मेरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा या गेन होगा या लॉस होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। माइक ऑन कीजिए मैम, सैली मैम। सर नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड। अब इतना इजी होता तो मैं पूछता नहीं, सिंपल लॉजिक है। अब इतना 1 घंटे बाद मेरे साथ बात करने के बाद आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इतना इजी तो मैं पूछूंगा नहीं कभी, क्योंकि परसेंटेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और आप क्या कर रहे हो? 20% माइनस 20% प्लस कर रहे हो। सेकेंडली उसका बेस क्या है? इसमें ना ही मैंने प्राइस दिया है, ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, ना ही बाइंग प्राइस दिया है, ना ही प्रॉफिट दिया है, कुछ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ परसेंटेज दिया है। ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ये है। सेकेंडली फिफ्थ ग्रेड के लिए पूछता हूँ, ए बी सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे बी है, ए का मल्टीपल है, सी का फैक्टर है, मतलब तीनों तीन कनेक्टेड एक दूसरे से, राइट? ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ये ऑर्डर है, और तीनों तीन अंदर रिलेटेड है। ठीक है, अब बी है, मैं अभी लिख देता हूँ, 6 तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं लिख देता हूँ तो एटलीस्ट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ठीक है, बी है, वो उसका एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, या दोनों होगा, या कुछ नहीं होगा, और क्यों? अब ये मैं सर आपको इक्वल बताता नहीं हूँ। होगा, दोनों दोनों नहीं होगा क्यों नहीं होगा दोनों? सर, बिकॉज अगर एक जगह से कम है तो दूसरी जगह से हाई भी तो है ना। हाँ, तो दोनों में से एक हो सकता है ना। नहीं मतलब अगर अगर जैसे आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि सेलिंग प्राइस सेम है,
हाँ अगर वैसे ही बी के लिए ए और सी दोनों मायने रखते हैं इक्वली, हाँ तो इक्वली। फिर अगर कहीं पे वो लॉस है तो कहीं से वो ज्यादा भी तो उसको मिल रहा है। हाँ करेक्ट है, नहीं नहीं, लेकिन दोनों का अलग कंसेप्ट, दोनों अलग है, परसेंटेज वाइज नहीं है ये। तो फिर सर ये होगा एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, वेरी गुड। चलो मैं यहाँ पे, राइट है? कैन यू सी, मेरे को क्या मालूम। नहीं सर, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैं कर रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड ओके पे शेयर किया है, आई शेयर व्हाइट बोर्ड। ओके। दिख रहा है अभी? नहीं सर, इट्स नॉट येट। आएगा आएगा, इट विल शो समवेयर। या व्हाइट बोर्ड आई कैन सी नाउ। हाँ ये कंडीशन है, राइट? हाँ करेक्ट। और ए बी सी आर कनेक्टेड, हम्म। बी ए का मल्टीपल है हाँ और सी बी का मल्टीपल है, इंटर करेक्ट। उसका मल्टीपल है, फैक्टर होगा, राइट? ये हाँ मल्टीपल है, हाँ ये फैक्टर है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसका, मतलब फैक्टर मल्टीपल है, ऐसा नहीं 2 5 7 ऐसा नहीं दिया मैंने। करेक्ट। ठीक है, अब मेरे को चाहिए बी है, हाँ वो ए और सी का एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा? और सर, तीनों आई चीज अलग सपोज है। एलसीएम होगा, नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम्म, क्योंकि लेस है, हाँ सर इक्वल नहीं, तो तीनों दिन इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ सर, एलसीएम तो नहीं हो सकता बिकॉज बी सी से कम है, तो हम्म, सी के मल्टीपल में वो एलसीएम नहीं आ सकता। और एच सी एफ भी नहीं होगा बिकॉज बी ए से बड़ा है, हम्म, तो मेरे ख्याल से ना एच सी एफ है ना एलसीएम है। सही जवाब। ठीक है, सो सर, मैंने पहले वही बोला ना, इट विल बी इक्वल करेक्ट। फॉर। मेरे को मालूम था, मेरे स्टूडेंट भी ऐसे करते, सर मैंने आपको बताया था, आपको जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों जवाब करेक्ट। नहीं आया वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हम्म। रीजन चाहिए। हाँ आपने खाना बनाया, बहुत प्यार से बनाया, आपको अगर आपके हस्बैंड ने या आपके बच्चों ने आपके बोले मम्मी खाना नहीं अच्छा बनाया, आप पूछोगे ना, हम्म खाना अच्छा नहीं बनाया, हम्म। क्या गलती है इसमें, इतना प्यार से तो बनाया मैंने, करेक्ट। करेक्ट है ना? आप पूछोगे ना उसको। हाँ हाँ। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर सही है, आंसर इज द लास्ट थिंग व्हाट आई आस्क माय। हम्म। मेरे को रीजन बता, तुम अप्रोच कैसा करोगे? करेक्ट, कि हाउ कम इट वाज इक्वल, वही जानना था। करेक्ट। तो ओके। ये क्यों है? क्योंकि इसका बेसिक फंडा क्या है, एचसीएफ हाँ will be always less than or equal to the lowest number, and हाँ। LCM will be always greater than or equal to the highest number. Yeah, on that basis only I thought of, like, replying for LCM. वेरी गुड। चलो आपको एक तो हाँ मालूम है, अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं एचसीएफ एलसीएम में चालू करता हूँ। हाँ ठीक है, अब मेरे को बताओ, आपको आता है 32 का, हाँ मेरे को एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, हाँ। बताइए। सर, एक मिनट, कैलकुलेट करना पड़ेगा वैसे तो। करो करो आराम से, आप कैलकुलेटर यूज करो, पेपर यूज करो, पेन यूज करो, आपको जो यूज करना है। वो नहीं सकते ओलू। Sir, I'm asking my son to do it so that I will know हाँ हाँ, whether he जैसे remembers उसको this or बोलो, no. बिल्कुल जब बुक करे पहले। उसको ने अगर उससे अगर आंसर दे दिया सही सही, मैं हाँ भेजूंगा आपको। नहीं, बिकॉज है ना सर, ये उसको 5th में था एंड नाउ इट्स मोर देन अ ईयर, ये टॉपिक नहीं हुआ है उसको। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, हाँ, सो जस्ट वांटेड टू नो, मतलब उसको उसको थोड़ा ही मैथ्स में डोंट हैव टू आई लूज नीड एनीथिंग ना, प्रैक्टिस। ही डोंट हैव टू लूज। हाँ आपको 100 रुपया मिलेगा अगर उसने आंसर कर दिया। हाँ। मारवानो। एक मिनट ना, 32 LCM। हाँ हाँ आप सर, आपको चैट में लिखना है, मोहिन सर आप लिख सकते हो। हाँ। क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली आई वुड डू द चैट, चैट मेरे पास आएगी सिर्फ, और चैट किसके पास ही 2 जाएगी। 4 1। तो जब भी कोई पेरेंट स्टूडेंट अच्छा होता है तो वो बोलता है कि सर मैं करूं मैं करूं, मैं बोला तुम चैट में लिख दो। 4 8 16 32। कौन सा वाला सर? दोनों का अलग अलग चाहिए मेरे को। 32,000। वेरी गुड, ओके करेक्ट। चलो सर का आंसर मेरे को मिल गया। क्या है मैम? सर एक मिनट, मेरी स्क्रीन चली गई, वन सेकेंड सर, वो एक मिनट क्या। ओरली कर सकते हो मैम ये तो आप। या सर, बट यहाँ से मेरा स्क्रीन ही वो जूम से बाहर आ गई, 1 मिनट। ना ना, आप रूम में हो,
नहीं नहीं हूँ, बट वो स्क्रीन चली गई, दूसरा पेज आ गया। ओके ओके, नाउ इट इज विजिबल। बोलिए क्या आया? सर नहीं आ रहा है उसका। सर लेट मी नो। आप बताइए आपका आंसर। सर सी दिस वे ही हैज डन, बट आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। बोलिए। आई कैन शो यू, जस्ट अ मिनट। नहीं आप सुनिए, आप मेरे को खाली ये बता दीजिए। सर वेरी इज गुड। दिस राइट? हाँ ये ठीक है, आपने जो भी किया है मैं समझता हूँ कि आपने ठीक ठाक ही किया होगा, आई कांट सी। मैडम अच्छा मेरे को खाली आंसर बता दीजिए। सर, आंसर तो वही 32 आ रहा है। 32 आ रहा है दोनों का? हाँ, नहीं वेरी दोनों का नहीं, एलसीएम नु कर। एलसीएम अच्छा, हाँ, इज सेइंग 32 ओनली एज पर माय सन। करेक्ट, दोनों का है, ठीक है। आपको हाँ मैं इसका आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है? हाँ। हम्म। आप बताओ, आप लायन हो या फिश हो? आप लायन हो या हाँ लायनस हो या फिश हो? सर, बट ऑन व्हाट बेस शुड वी कंपेयर? नहीं, कुछ काउंट नहीं, आप जैसे हो, आप लायन हो या फिश हो? फिश, ओके फिश। कहां से कौन सा? आप पानी में रहते तो बताओ एक बार मेरे को, खाली 5 मिनट आप पानी में रह के दिखाओ। करेक्ट। मैंने आप करेक्ट बोला नहीं होगा। जैसे आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। ओके, आप then लायन it will, yeah, because of that aquatic reason, then I have to shift to lion, like you know. नहीं, आप जंगल में रहते हो? नहीं। आप नॉनवेज खाते हो? आप फ्लैश ईट करते हो? नहीं। आपकी टेल है? आपके 4 पांव है? फिर करेक्ट कौन सा लायनस नहीं है। बन गया? हाँ। आप क्या हो एग्जैक्टली मेरे को बताओ, ये जो कैटेगरी मैंने बोला उसमें आप क्या हो? सर एक भी नहीं। आप हो क्या लेकिन? ह्यूमन हो? हाँ ह्यूमन। नहीं। करेक्ट है ना, आप ह्यूमन हो, राइट? अब हाँ। जरूरी नहीं कि मैंने जब बोला उसमें दो में से आपको चूज करना है, आपका माइंडसेट क्या था? ओके मेरे को सर, बोला कि that मेरे is को why I चूज asked you on करना ही है। what base should we compare. That was the reason of asking this question. हाँ करेक्ट, आपके पास जो मैंने पूछा जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन सेम हो या करेक्ट ही हो क्वेश्चन। Okay. अब इसका ना बेस फंडामेंटल, अब मेरे को बताओ, हाँ। एलसीएम जो है लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट मल्टीपल। हाँ। मेरे को मल्टीपल भी समझता है, राइट? मेरे को हम्म। हाईएस्ट भी समझता है, मेरे को फैक्टर भी समझता है, मेरे को कॉमन नहीं समझता है। हाँ। कॉमन समझाओ मेरे को। Common means any one number which can be divided or multiplied for both of them, whether LCM or HCF. दूसरा नंबर किधर है? नंबर 32 दिया था ना। एक ही दिया ना, दूसरा नंबर हाँ। किधर? नहीं था ही। एलसीएम नहीं तो, एचसीएफ के लिए यू शुड हैव हाँ, एटलीस्ट 2 नंबर्स। नहीं मतलब 32 नंबर, whether we do HCF with that or LCF with that. अरे मैम, आप गाइड, एलसीएम एचसीएफ में हाँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। हाँ। फैक्टर और मल्टीपल मेरे को समझता, हाईएस्ट लोवेस्ट मेरे को समझता है, लेकिन मेरे को कॉमन कॉमन आने के लिए कम से कम मेरे को कंपेयर करने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ना। हाँ, yes, with 32 another one number you are asking तब for. जाके आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाओगे, राइट? Okay, yeah, got it. तो ये Okay. बेस कंसेप्ट है, आप समझ में आया? हाँ। जैसे बेस कंसेप्ट बोला कि ये बी नहीं हो सकता है, ना ही फैक्टर हो सकता है, ना ही मल्टीपल हो सकता है। क्यों? हाँ। हाँ। क्योंकि बी ए से correct. बड़ा है तो फैक्टर नहीं हो सकता है, बी से छोटा है तो ये मल्टीपल नहीं हो सकता है। इसके नहीं लिए हो सकता है। दोनों नहीं है। आई वॉन्ट अ रीजन, आप Okay. मानोगे नहीं। इन कोविड टाइम 2021 में मेरे पास एक, मेरे टीचर के, उससे महेश ट्यूटोरियल के सर का फोन आया था मेरे को। ही वांटेड, क्योंकि उससे महेश ट्यूटोरियल 30 साल काम किया एज अ पार्टनर आल्सो, राइट? एंड ही वाज Okay. वेटरन, 8 9 10th में स्टेट बोर्ड में मास्टर है वो, Okay. ठीक है? मतलब उससे, मतलब एक क्वेश्चन बोलो तो आप उसको रट्टा होगा एकदम, ठीक है? मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा था एबीसी वाला, ही कुड नॉट आंसर। Oh. मैंने Okay. ये क्वेश्चन पूछा उसको 20% वाला, मैंने बोला स्टिल यू कुड नॉट आंसर। सो व्हाट आई एम सेइंग, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है। Correct. Logical thinking is important. डेप्थ कब गए हैं, हाँ। ओके? आप डेप्थ कितना गए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस Correct. व्हाट एग्जैक्टली आई रेकमेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
अब आपको ये सब आप डेप्थ रीजन जाओगे ना, आपको समझ में आएगा। जितने भी मैंने एग्जाम्पल आज दिए हैं, आप देखो ये कोई स्कूल में, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं सिंपल पूछ लूँ बोर्ड मास, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसमें 90% टीचर को समझ में भी नहीं आएगा कि उसने क्या पूछ रहे हो। ओके। ठीक है, अगर बोर्ड मास में ओ का मतलब है ऑफ, और मल्टीप्लीकेशन एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलता हूँ हाफ ऑफ 50, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ये? डिवीजन। नहीं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 50 ये होता है इसका मतलब। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके। ठीक है, लेकिन देयर इज वन कंडीशन इन बोर्ड मास, और अगर आप उसमें आईसीएससी के पेपर ढूंढोगे वहां पे फर्क पड़ता है। सिर्फ एक कंडीशन में इसको बताऊंगा, नहीं आप ढूंढो। ठीक है, एक कंडीशन है जहां पे आपको ऑफ को ऑफ नहीं लेके मल्टीप्लीकेशन लिया डायरेक्ट, ओके। आपका क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ऑफ की जगह आपने ओके। सीधा मल्टीप्लीकेशन कर लिया, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और आपने बोर्ड मास अप्लाई किया, आपका आंसर रॉन्ग चला जाएगा। आप सोचो, ओके। एक ही कंडीशन है, एक ओनली वन कंडीशन। और मैं आज से कम से कम 20 साल से जितने टीचर्स मेरे को मिलता है ना, मैंने उसको पूछा है, मेरे को आज तक एक जन ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, एक भी जन ने नहीं। ओ। और सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन, और कोई नहीं है। और मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मैंने सबको सिखाता हूँ, लेकिन 50% को मालूम होगा कि ये क्या होता है कंडीशन। आप ओके। इसको ढूंढो अच्छी है क्या कंडीशन। सर? रूट? हाँ, रूट? नहीं रूट नहीं है, बोर्ड मास है। नो बोर्ड क्यूब, मास? नो रूट, नथिंग, इट इज सिंपल। बोर्ड मास मतलब सिर्फ ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नो स्क्वायर, नो इंडाइसिस, नथिंग, नो रूट, नथिंग, सिंपल वाला। या मतलब मीन्स सर वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाओ वन बाय वन। मैंने क्या बोला, ऑफ को आपने अगर मल्टीप्लाई ले लिया, ऑफ को एज अ हाँ। मल्टीप्लिकेशन ले लिया डायरेक्ट, हम्म। ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल बोलता हूँ, 4+2 of 9 -3 +18 डिवाइड बाय 2, ऐसे कर दिया, राइट? इसमें सब कुछ है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट मैंने डाला भी नहीं है अभी तक, राइट नाउ देयर इज नो। लेकिन ये वाली चीजें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट? ठीक है ना? नहीं सर, वो स्टार्टिंग से होगा ना, लाइक फर्स्ट टू इक्वेशन क्या है, सेकंड, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एंड अगर सेकंड अगर ऑफ सॉल्व होने यहाँ पे के भी होता बाद। है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वो गलत बोल रहे हो आप। अगर मैं हाँ। यहाँ पे बोल दूं, यहाँ पे 12 है, हम्म। डिवाइड बाय 6 कर रहा हूँ मैं, 3, हम्म। यहाँ पे मैं ऑफ 1/2 कर रहा हूँ, तब भी आपको ऑफ पहले करना पड़ेगा। ओके। इट इज नॉट लेफ्ट टू राइट, हम्म। ऑर्डर ही, इट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ओके। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 4 -9 हम्म। +12, इसका आंसर क्या आएगा? सर क्या बोला, 4 - 9? ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, 4 - 9 +12। अच्छा एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ। ओके सर, 3 आएगा आंसर। 3, वेरी गुड, कैसे किया? हाँ सर, 4 - 9 मीन्स प्लस एंड माइनस माइनस एंड -5 साइड ऑफ द ग्रेटर नंबर, देन -5 +12। ओके। अब 5, एक मिनट, 7 मीन्स +7, आंसर विल बी +7। करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो 3 में बच्चे क्या करते हैं मालूम है आपको? हाँ। बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस करते हैं। हाँ, पहले प्लस करते हैं देन वो प्लस को वो करते हैं। करो, 4 करेक्ट। -17, आपका आंसर है -13, आपका तो आंसर 7 आ रहा है। हाँ। नहीं सर, लेकिन ये होगा ही नहीं ना, मतलब पहले 4 एंड -9 का ही कैलकुलेशन होगा। नहीं, मेरे को 4 और -9 करने, पहले तो एडिशन करना ना, मेरे को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो आप? सर बिकॉज प्लस एंड माइनस इज माइनस, नो, +4 ना एंड ना, -9। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? पहले ऐड करो, राइट?
हाँ सर वो बोलते हैं, बट व्हेन आई टीच माय सन ना, दैट टाइम इवन आई रियलाइज कि ये बोर्ड मार्क्स से कुछ अलग आ रहा है एंड रियलिटी में आंसर कुछ और है। ठीक है, अब मैंने ना इसके अंदर ये इंटीजर है, ठीक है, हम्म। मैंने इसको अगर समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई जस्ट टेक लास्ट एग्जांपल, हाँ। 4 माइनस 9 हम्म। माइनस 7 हम्म। प्लस 8 हम्म। माइनस 5 प्लस 10, ऐसा कुछ हम्म। मैंने एग्जांपल ले दिया उसको, राइट। हाँ। हम्म। अब आप कैसे करोगे, आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है इसको, हाँ मैक्सिमम 3। ओके सर, ये बीच का नंबर निकाला आपने? नहीं नहीं, निकाल, अभी डाल रहा हूँ उसमें थोड़ा ओके। सा ठीक ओके है। मैंने पहना हाँ, पहना। मैं आपको समझाता हूँ कि कंसेप्ट को एज अ फन वे में आप कैसे समझ सकते हो। हाँ हाँ सर, एक सेकेंड ना। अच्छा लगा, 2 पेरेंट है लेकिन एक्टिव है, लेकिन जो इंटरेस्ट से करता है मेरे को भी सेशन लेने में मजा आता है। हाँ सर वो तो है। सर आंसर विल बी 1 Yeah. + 1। मैंने क्या बोला, आई एम लीस्ट बॉदर्ड इन आंसर। ओके। दो सर, 2 स्टेप में मैं जब सन को एक्सप्लेन करता हूँ कि 4 है उसका भी साइन प्लस है, हाँ, तो आप करेक्ट करेक्ट प्लस करेक्ट, वाले को ग्रुप करो, उसको ऐड एक्सेलेंट, करो, और फिर माइनस वाले को ऐड करके उसको माइनस करो। करेक्ट, सही जवाब, करेक्ट, ये सही तरीका है। मैं क्या करता हूं, मैंने जेंडर बनाया है, प्लस इज बॉयज एंड माइनस इज गर्ल्स, ठीक है। अगर मैंने बोला कि अगर तुम मॉल में जाते हो, मेरी स्टोरी है, बोला अगर तुम मूवी देखने जाते हो, बोला तुम्हारे पास सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पे कोई है क्या, एनी एनी रिजर्वेशन, नहीं है। फिर मैं एक्टिव बोला, अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो तो क्या होगा, तुम ये पांचों पांच बॉयज गर्ल्स की मिक्सचर ग्रुप है, तुमको वॉशरूम जाना है तो क्या करोगे, एक वॉशरूम में जाओगे, नहीं अलाउड है, राइट। तो बॉयज का वॉशरूम अलग है, गर्ल्स का वॉशरूम अलग है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितने बॉयज है यहाँ जाएंगे, जितने गर्ल्स है यहाँ जाएंगे, तो पहले सेपरेट करो, 4 + 8 + 10, ये बॉयज अलग हो गए, -9 -7 -5 अलग करो उसको। तो यहाँ पे होगा, ये आ गया आपका 22, और यहाँ पे बन गई 21। आपका सिंपल हो गया, आंसर इज 1। अब चेक करो बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बॉयज ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूं, इफ आई मेक इट 3 हियर, तो क्या होगा, दिस विल बिकम 15 एंड दिस विल बिकम 21। अब क्या हो गया, 15 बॉयज हो गए, 21 गर्ल्स हो गई, तो आंसर क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर मोर, -6। 6 गर्ल्स आर मोर एंड गर्ल्स आर डिनोटेड बाय माइनस, सो आंसर इज -6। ये आपका खत्म हो गया किस्सा। तो हाँ ये तो सर आई टोल्ड यू द सेम थिंग, नो, इट वाज +1। नहीं नहीं, आंसर मैंने क्या बोला, हाँ नहीं नहीं, मेरे मीन्स को, आई वांट टू नो वेदर आई एम गोइंग राइट और व्हाट। अरे मैम आंसर तो राइट आ ही जाएगा, आंसर से क्या फर्क पड़ता है, आंसर कोई थोड़ी रॉकेट साइंस है। हाँ। देखो मैम, वैल्यू हाँ किसकी सर की बोलिए। जाती है, वैल्यू उसकी की जाती है जो क्विक आंसर आता है, जैसे प्रोग्रामिंग है, करेक्ट। राइट। अब आप हम्म। एआई को, आप एआई ने कभी चैट जीपीटी यूज किया आपने कभी, क्या सर, रिपीट कीजिए ना। चैट चैट जीपीटी यूज किया आपने कभी, हाँ कोई बहुत भी रेयर एआई टूल, लेकिन किया है। कोई भी एआई टूल यूज किया है, नहीं सर, चैट जीपीटी किया है Yes, रिसेंटली, अभी 1-2 दिन से मैं correct। मतलब गो थ्रू कर रही थी, उस आप पे जो है चीजें क्या, मांगो, आप क्या मांगते हो उसके पास से, वो लाइक क्विक व्हाट एवर करके वी आपको नीड। ऐसे सिस्टम देगा, आपको सिर्फ रिफाइन करना होता है उसके अंदर, ओके। करेक्ट। आप जो चीज मांगो उसको, आसमान तान चाह रहे उसको बोलो कितना डिस्टेंस, फट करके दे देगा आपको, राइट। द इंफॉर्मेशन इज सो वेल डिजाइन, क्विक। तो स्पीड, या। अब जैसे मैं एक पीपीटी बनाऊं तो मेरे को बनाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, उसको बनाऊं मैं 15 मिनट में बना देगा वो, उससे भी फास्ट। करेक्ट। तो स्पीड इज हम्म। इम्पोर्टेंट, आपका प्रोसेस, स्पीड कैसे आएगा, आपका प्रैक्टिस और आपका प्रोसेस और आपका कंसेप्ट अगर जहां पे क्लियर होगा, हम्म। जैसे सर का कंसेप्ट हम्म। एब्सोल्यूट क्लियर, उन्होंने बोला बॉयज अलग करो गर्ल्स अलग करो, करेक्ट आंसर है, उन्होंने सिर्फ प्लस माइनस लिया, लेकिन मैंने उसको स्टोरी बेस में कन्वर्ट किया है, करेक्ट। ठीक है। सो आपको अगर और कुछ है तो ये तो चलते रहेगा अपने पास, हम और 4-5 घंटे करेंगे तो भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको कुछ राइट। आइडिया इज दैट, सी जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेगा, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दिस
कि दिस काइंड ऑफ लर्निंग विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इनका Yeah. जो आगे जाके बनने वाला है, Hmm. कंपटीशन जो होने वाला है रोबोट से होने वाला है या Hmm. एआई से होने वाला है, जो मल्टीफोल एक्यूरेट है, मल्टीफोल फास्टर है, मल्टीफोल आपसे बहुत ज्यादा है। लेकिन खाली उसके बाद आज के दिन में, अभी के लिए हम कल का नहीं बोल सकते, लेकिन आज के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। वो वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन, जो उसको फीड किया जाता है उसके ऊपर ही करेगा वो काम। तो खाली अपने पास ब्रेन भगवान ने अलग दिया है। हम ये करें कि अभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आ गया उसके अंदर, लेकिन हम ये करें कि भाई इतना ज्यादा, जैसे अभी ब्रह्मोस छोटा है, राइट, बिल्कुल जाके सटीक टारगेट पे अपनी मिसाइल गिरी है। मतलब उन्होंने बिल्कुल टारगेट को प्रोग्राम करके भेजा था कि ये यहाँ पे जाके यहाँ पे हिट करो। सो जब इतनी इंटेलिजेंस बढ़ गई है तो वी डोंट नो कि हाउ फार इट विल गो। इट इज गुड वन वे, सेकंड वे इट इज डेंजरस ऑल्सो फॉर अस। ठीक है, जितना जाएगा ह्यूमन लाइफ की वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी, जितनी मशीन पे डिपेंडेंस होगी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अपना तो अभी आधा निकल गया, आधा बाकी है। ठीक है, अब बाकी के जनरेशन जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ, ठीक है, correct. तो आपको अगर इसके लिए और कुछ भी चाहिए तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, मेरा ग्रुप अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीजें, तो यूजुअली आप ग्रुप में आप जब भी पोस्ट करोगे, ठीक है, Hmm. मैं रिप्लाई करता हूँ। और बहुत सारे ग्रुप में तो मेरे को भी जरूरत नहीं, पेरेंट ही रिप्लाई कर देते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, सो अगर कोई अपने ग्रुप में मैं रीड करूँ तब तक 4-5 जन ने ऑलरेडी आंसर दे दी चुके होते हैं। और मेरा पर्पज ये है, माई पर्पज ऑफ द ग्रुप इज दैट कि किसी को भी कोई डाउट हो, कम से कम कोई ना कोई हेल्प करने Yeah, वाला है। true, true. इरिस्पेक्टिव, बिकॉज मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट 90% ऑफ माई बैचेज आर ऑलरेडी फुल। और वो मेरे दिसंबर में, मतलब मार्च एंड होते होते मेरे सारे बैच फुल हो ही जाते हैं। बट अदरवाइज मेरे को ये सब की तरफ, बट आई वांट टू प्रमोट एज अ मैथमेटिशियन। मेरे को लगता है कि जितना मैं स्प्रेड कर सकूं इसको, Correct. आई शुड बी एबल टू स्प्रेड So, दैट। how many years since you are in this field for मैंने maths? मैथ्स ना, कभी मैं आपको मेरी हिस्ट्री बताऊं तो, जब मैं छोटा, मेरा मैथ्स कैसे अच्छा हो, मैं आपको थोड़ा ये हिस्ट्री बता, थोड़ा सा एकदम ब्रीफ। मैं जब छोटा था ना, मैं कंचे Okay. बहुत खेलता था, गोली गोटी गोटी बहुत खेलता था। ठीक है, हाँ. Hmm. प्रैक्टिकली विदाउट फेल एवरी डे वो काउंट करता था, एवरी डे। और कभी गलती हो गई, अरे कल तो 3225 थी, आज कैसे 2324 हो गई। ठीक है, वापस गिनो, वापस गिनो, Hmm. वापस गिनो, वापस गिनो। Hmm. मैं आपको Hmm. आज की डेट में, अगर मैं बाहर जाऊं ना, अनकॉन्शियस माइंड में मैं हर एक कार का, हर एक बाइक का मैं नंबर रीड Number. करता हूँ। Hmm. और Same मैं here. I इस also हिसाब do से मैं that. करता हूँ। सी, दिस इज हाउ अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स, बिकॉज यू लाइक नंबर्स। मेरे को कोई इंग्लिश देगा ना, मैं रीड नहीं करूंगा उसको, ठीक है यार, उसमें कोई फर्क नहीं। आपका इंटरेस्ट किस पे है। तो दिस इज हाउ मैथ्स का भी, मैं पहले इंजीनियरिंग मैथ लेता था, जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की थी ना, तो मैं तब इंजीनियरिंग मैथ लेता था। फिर 11th 12th का लिया, फिर Okay. धीरे धीरे आई सेड के, बहुत मैंने ये सोचा कि इंजीनियरिंग में आने के बहुत ज्यादा बच्चे वीक होते हैं ऑलरेडी, 11th 12th में बहुत ज्यादा वीक। Okay. मैंने उसको बेस Hmm. ठीक करो, उसको प्लिंथ ठीक करो। True. तो आपका Hmm. बच्चा अगर सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड मेरे पास आ गया ना, तो आई कैन डू वंडर्स विद दैट। बट Correct. जैसे जैसे अगर 7th 8th में, 8th 9th 10th में तो बिल्कुल, मतलब वो एकदम ना पका हुआ आम हो जाता है। उसको फिर आप काट सकते हो, खा सकते हो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। आप ना ही उसका अचार Correct. बना सकते हो, ना ही बुरा बना सकते, नहीं। आप अगर बस कच्चा आम हो गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो Hmm. उसके साथ। Correct. सो आपके पास अभी, ऑनेस्टली, मैं आपको एज ए इंस्टीट्यूट जो मेरे को आइडिया है, आपके Hmm. बड़े बेटे के लिए आपके पास 1 साल और है, Correct. लेकिन बेटी के लिए आपके पास 5 साल है, सर के पास 2 साल है। Correct. तब तो ऐसी ऑलरेडी ही इज इनटू एक्सीलेंट पाथ। ठीक है, सो मेरे को मोनिश सर के लिए मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े, यू आर डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, आप मेरे को कभी भी फोन कर लेना, आप मेरे को नंबर दे देना, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा। आपका नंबर होगा नहीं मेरे पास। हाँ, आप, सर मैं आपके ग्रुप्स में हूँ एंड आई एम वन ऑफ दैट पेरेंट्स हु रिप्लाइज बिफोर यू एट टाइम्स। अच्छा, आपका नाम हिंदी में लिखा हुआ था है क्या। हाँ हाँ, मोनीश वंजाना। हाँ हाँ हाँ, तब तब बराबर है, करेक्ट। तब ये आपका यूजुअली हमेशा आपका आंसर आता है, करेक्ट करेक्ट। यस यस, आपका हमेशा, मतलब ही इज वन ऑफ द पर्सन हु ऑलवेज रिप्लाइज। Okay. उनको No, I have recently joined your group, so I don't know all those things. नहीं नहीं, करेक्ट, हाँ. लेकिन ये कि आपका Hmm. ग्रुप अलग होगा ना, आप 7th में, ये 5th में है। हाँ हाँ, वैसे भी होगा, बट देन टू आपका जो मॉम ग्रुप है ना, उसमें आई एम अ न्यू कमर. करेक्ट करेक्ट, नहीं ये मेरे ग्रुप तो करीब करीब 13 साल से, जब से व्हाट्सएप आया है 2012 में। इनफैक्ट हाँ आप जो हाँ. भी व्हाट्सएप के अभी फीचर देख रहे हो ना,
जो आपके एडमिन को राइट से एडमिन डिलीट कर सकता है, एडमिन अप्रूव कर सकता है, ये सारे मैंने उनको मेल पे भेजे थे 8 साल पहले। ओ क्योंकि एक बार मेरे मेरे ग्रुप में स्पैम अटैक हुआ था, बहुत गंदा अटैक हुआ था, ओ 2017 या 18 के टाइम पे, 16-17 के 10 साल पहले। तो उसके पहले मैंने लिखा, ओके तो ये जब हुआ उसके बाद मैंने बहुत सारे मेल कम्युनिकेशन लिखे उसके। बोला एडमिन लिख ओके दो, एडमिन का राइट नहीं, एडमिन डिलीट नहीं कर सकता कुछ। बोला इतनी सारी जगह कोई भी कहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो इट इज वेरी एम्बेरेसिंग। या इट्स अ रिस्क। हाँ। और बहुत बहुत गंदा अटैक हुआ था मेरे ग्रुप पे। एंड ओ फॉर्चुनेटली मेरे सारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ मेरे को फोन करे, हिरेन क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मैंने सारा व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ा मेरे को, ग्रुप पूरा। एंड इतनी ओके। गालियां पड़ी कि पूछो मत। मतलब स्पैमिंग, मतलब बहुत अलग लेवल की हम्म। spamming थी। मतलब वो कोई तो ओके। फॉरवर्डर से कहाँ से 34-32 करके कोई तो दूसरे इंटरनेशनल नंबर से कनेक्ट किया था। एंड मैं बोल भी नहीं सकता, वो ऐसी गंदी हुई थी। मतलब ऐसे ऐसे फोटो डाले थे कि आप पूछो मत। ओके। तो And sir, you take only maths or you take physics and all also? मेरे पास सारी टीम है। सी बेसिकली मैम ना, मेरा जो एरिया होता है ना, मैं खुद मानता हूँ यू शुड बी स्पेशलाइज इन समथिंग। यू कैन नॉट हम्म। टेक मोर देन 2 गुड सब्जेक्ट्स। या मैथ्स या फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं तो खुद नहीं लेता हूँ। मैं तो खुद एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, और मैं प्रीफर ये करता हूँ कि जो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट लेना, उसी के साथ मैं उसको भी रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि ऑल Okay. सब्जेक्ट टीचर को मैं बोल देता हूँ कि आपको ऑल सब्जेक्ट टीचर चाहिए, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप कनेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट Okay. ग्रुप में बहुत आ रहा है ना, तो मैं बहुत जन बोलते हैं कि सर मेरे को टीचर चाहिए। बोला आपको ऑफलाइन चाहिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आपको अगर आते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोला, जिससे आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को टीचर चाहिए, आपने आपका नाम नंबर एड्रेस मेरे को दिया ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं ग्रुप पे डालूंगा ना, आपको आज के आज आधे घंटे के अंदर 15 से 20 कॉल आ जाएंगे। Correct. तो टीचरों की कमी नहीं है, ओनली थिंग इज टू हम्म। सेलेक्ट टीचर। मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि आपको कोई भी आए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू कनेक्ट। ना ही मेरे को इसमें 1 रुपया मिलने वाला है, ना ही मैं 1 रुपया देने वाला हूँ। अगर Yeah, just a mediator. आई हाँ। एम जस्ट हेल्पिंग यू टू कनेक्ट। एक पेरेंट है Correct. जिसको ट्यूटर चाहिए, एक ट्यूटर है जिसको बच्चा चाहिए पढ़ाने के लिए। दैट्स इट, Correct. आई एम हेल्पिंग यू टू कनेक्ट। बाकी मेरा उसमें कोई, उसमें मतलब अगर फ्री में पढ़ाएगा आई एम हैप्पी, अगर उसको 5 लाख दोगे आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, Correct. मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करा रहे हो। ना ही मैं कभी पूछता हूँ अब कब आया। ना ही कोई टीचर मेरे को बोलते थे सर थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से मेरे को ट्यूशन मिल गया। बहुत बार पेरेंट बोलते हैं सर आपने मेरे को दिया था, उसमें से मेरे को अच्छे टीचर मिल गए। दैट्स इट, उसके हम्म। बाद मेरे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। Okay. और वो भी अगर 100 का मैं नंबर डालूं तो उसमें 10 जन मेरे को रिप्लाई नहीं करते। बड़े बोलते हैं Correct. ना, नेकी कर दरिया में डाल, हाँ। उतना। नहीं नहीं होता है, लाइक अपने हाथों से किसी का होना होता है तो वो करके होता है। देखो हम। भगवान ने, मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने अपने को इतना कैपेबल बनाया है कि हम किसी के हेल्प कर सके, उतना ही काफी है अपने लिए। करेक्ट। करेक्ट। हमको इतना सक्षम बनाया भगवान ने कि हम कर सके। हाँ। अभी एक बीच में ट्रू। एक रील में देख रहा था, वहां पे बोलता है कि एक राजा ना दान कर रहा था। तो बोलता हमेशा दान करते टाइम वो हमेशा मुंह अपना नीचे रखता था, शर्म के मारे। तो एक ने पूछ लिया कि सर आप इतना, राजा इतना आप दान करते हो, ठीक है, फिर आप इतना ऐसे क्यों करते मुंह डाला। बोला मेरे को शर्म आती है। बोला देने वाला कोई और है, भगवान ने उनको दिया है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं, लोग मानते हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो मेरे को हम्म। उसके लिए शर्म आती है करेक्ट। कि देने वाला कोई और है, लेकिन लोगों को हम्म। लगता है कि मैं दे रहा हूँ, तो मेरी लेकिन ये समझ भी सब में नहीं होती है ना, ऐसी सोच। सोच, अगर ये मैं बोला सोच अगर ठीक कर ले लोग, हम्म। तो सारी मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ वही वही। अगर अगर आप हम्म। ये देख लो, मैं तो हर एक क्लास में, मतलब हर एक साल में ऐसे 8-10 सेशन लेता हूँ। अभी मैं इसका ले रहा हूँ, कल मैं इसका लूंगा सेशन पेरेंट का। अब आते 10-15 जन, मैं कम से कम 10,000 पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ, लेकिन आते दस ओके। 1% से कम लोग आते हैं। बट आई एम ओके, मतलब जितने को मैं अगर एजुकेट कर सकूँ, यस यस। एजुकेट कर या सकूँ, इतना काफी है। या नो, इवन टुडे सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल। हाँ, लेकिन जिसको मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है ना, वो तो मेरे साथ हाँ। बात करके पागल हो जाता है। ओके। या। बिकॉज वो होता है ना कि जब पैशन से आप पढ़ाओ ना, तो आपके पास मैं अलग अलग चीजें सोचते रहता हूँ, ढूंढते रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे मैंने आपके अपने हम्म। दिमाग में कीड़ा डाल दिया है, ठीक है, आप जब तक वो ऑफ वाला ढूंढोगे नहीं, आपको चैन नहीं मिलेगा। आप ढूंढो, वहां पे एक कंडीशन ऐसी है, हाँ। वहां पे वो ऑफ को मल्टीप्लीकेशन लोगे तो नहीं चलेगा। आप मोनिश, करेक्ट। मेरे को अभी उनका नंबर मैं सेव कर दूंगा, उन्होंने हिंदी में हाँ। मिल जाएगा मेरे को, उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं। आई डेफिनेटली ओके। सेव योर नंबर।
Sir, can I give you a call tomorrow? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल कीजिए। What time are you free? अपना कल सैटरडे है ना, तो कल मेरा 11 हाँ. बजे एक सेशन है इन लोग का, हम्म. लोअर ग्रेड का। 10:30 से 11 के बीच में अवेलेबल हो गया, 9 बजे पहले, आप 8:30 के पहले कर दो तो भी चलेगा। Morning में. morning में। या फिर उसके बाद Okay. मेरा 1:30 बजे और सेशन है, 3 बजे बाद फ्री होगा। Okay, so maybe after 3 or before 9. अगर आपको I'll रात give को you a कोई call. प्रॉब्लम नहीं, आपका लंच वंच डिनर विनर हो गया है, तो आप रात को 11-12 बजे करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. आपकी सारी Okay. फैमिली You को मैं will देख be चुका हूँ, awake, आपकी no, that बेटी भी time. आ गई है। हाँ, आपका आप बेटी जल्दी रहोगे ना? बाजू बैठे, मैंने सबको देख लिया है। Okay. अगर आपका मतलब सब 11-12 बजे भी आप जगे रहोगे ना? मतलब you will be हाँ, awake, no, that अब time. मैं बहुत एक्टिव होता हूँ 10-11-12 बजे के बाद। आपको देखो, अच्छा. आप मेरे को सुबह फोन करो या मैसेज करो, आपको हम्म. रात को 12-1 बजे 2 बजे का भी मैसेज आएगा। Okay. आप जी को जितने मेरे चलेगा. वोटिंग या पोलिंग मैंने डाले हुए हैं ना, वो सारे 10, 11, हाँ. 1 बजे के बाद डालता हूँ मैं। Okay. तो जब आराम से होता हूँ Okay. तो आराम से ड्राफ्ट करता हूँ, फिर आराम से डालता हूँ, तो आप वो कोई Correct. Then प्रॉब्लम। I will try today calling you between 11 to 12. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आराम से हाँ? कभी भी। Yeah, you can save my number अगर आपको लगे कि अभी आप मेरे को भेज दीजिए मैसेज, ओके. ठीक है? ओके, चलेगा. मैं आपको हाई भेजती हूँ. शायद अपना कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे तो पहले हुआ है. होगा होगा। हाँ, बट हाई करके मैं आपको अभी भेज देती हूँ. हाँ हाँ, ठीक है, आप अपना शैली नाम करके भेज देना। या ठीक है। सर, और आई एम कॉल आपकी बेटी का स्कूल कौन सा है? गुंडेचा सर. लोडेजा, सर बोली वाला पहले ना? वो लोग अजमेरा में थे. फ्रॉम नर्सरी हाँ हाँ till grade 5 my son was in Ajmera Yogi Nagar हाँ and हाँ। daughter has done her pre primary there. And इसका फर्स्ट और मेरे सन का 6 से मैंने चेंज किया गुंडेचा. So this बोरीवली is वाला my ना? second year. यार बोरी वाली ब्रांच कांदरपाड़ा. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। आपने हाँ. शायद अभी अपना अप्रैल में ही बात हुआ था क्या शायद? हाँ सर, अभी हुआ है. जस्ट हाँ 1 हाँ, मंथ भी नहीं हुआ है. करेक्ट करेक्ट। मैंने जब कॉल किया ना दैट टाइम यू आर ड्राइविंग. तो हाँ आपने हाँ बोला कि मैं बाद में करता हूँ. एंड आपका जब कॉल आया ना, तो मैं मेरे सन की स्कूल में थी. उसका लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट कराया था ना, उसमें मिस्टेक थी. हाँ, ओके ओके, तो मैं वो करेक्शन के लिए गई थी. एंड दैट टाइम आई वाज इन प्रिंसिपल्स कैबिन. करेक्ट करेक्ट, हाँ, नो नो प्रॉब्लम, तो आप मैंने आपको बोला कि सर मैं बाद में, मतलब बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो सामने ही बैठे थे करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक। प्रिंसिपल. फिर अपना हो, मतलब वो कन्वर्सेशन स्टॉप हो गया क्योंकि आप कोई सेशन में बिजी हो गए थे करेक्ट करेक्ट, नो प्रॉब्लम, आप कर ही जाए, इसके लिए. इसके बाद कोई हाँ. सेशन नहीं। ओके. नहीं ठीक। नहीं, तभी उस दिन पे. नहीं नहीं, मैं बोला देन आज कर लेना आप, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके बाद चलेगा. कभी भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं। And I'll give you a call itself. श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। Yeah. Okay, sir. It was a very nice session. Enjoy. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। हाय बेटा, क्या नाम है Right. इसका? You हाँ, want to प्रिया। Freya. प्रिया, F. Freya. प्रिया प्रिया, Yeah. ठीक है। चलिए, शुभ शुभ मैम, शुभ सर, शुभ तो आपके बेटे, डॉली मैम, अमर सर, आपको किसी को और आपका तो चेहरा भी नहीं देखा मैं सर। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो एक बार के लिए, एटलीस्ट मैं देख लूं कौन था। या आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ ये है, बोरिंग तो नहीं लगा? डॉली मैम तो आई थिंक 3-4 बार जाके वापस आ गई और क्या बोल रहे थे? और नहीं है। डॉली मैम तो 4-5 बार लॉग आउट करके लॉग इन करके वापस आई है। नहीं नहीं सर, 4-5 बार नहीं, एक ही बार गई थी मैं. अच्छा, ओके, नहीं, मेरे कोई कोई जाके वापस आया तो मैंने आपका नाम देखा, आप हाँ डिस्कनेक्ट आके वापस। हाँ सर, nice information. Actually my kid is in 7th and we have just started giving competitive exams. वेरी गुड। आप 7 में दो, 7 तक दो। कौन हाँ, से he will start 7th now, ICSE board. कौन से stream? हाँ सर, हमारा चैलेंज ये है कि हमें कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है, बट बिकॉज वी आर इनटू टीटी एंड म्यूजिक, हमें प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है. ओके, तब तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव और मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्पीड में ये करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसीलिए मैंने आज का सेशन ज्वाइन किया. आई एम बेसिकली, आई टेक हिज मैथ्स वेरी and नाइस। I personally like maths, but I've done only till 12th. तो आपको अच्छा लगा होगा आपका सेशन, जितने मैंने क्वेश्चन दिए आप वापस रिवाइज करो उसको, और अच्छे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, हम्म. तो आप करो उसको, अच्छे से प्रिपेयर करो। जब तक पेरेंट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पेरेंट से अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेरेंट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, एक डिसएडवांटेज चलो सुनता नहीं है अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज होता है 24/7 एक्सेस होता है आपके पास बच्चे का, जो किसी दुनिया में किसी टीचर के पास नहीं होता। ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कुछ हो, बाजू में नेबर रहता तभी भी नहीं एक्सेस है। आपका बच्चा रात को 2 बजे उठा है,
आपको उठाया, पापा मेरे को पढ़ाना है, आप बोलो चलो पढ़ा लो, क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं आ रही है, पढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम? यस उसका मूड सर, अच्छा सर होगा। एग्जैक्टली सेम हमारे घर में वही होता है। खेल के आते हैं, फ्रेश होते हैं, तो we take that slot. We take our slot of studying as per our, level where we are able to concentrate. एग्जैक्टली So आपका we are कैसे not है? able to join any classes because अरे there we have to भैया, आप adhere जब to तक पढ़ा रहे हो आपको ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ठीक है। नहीं, बट वो क्या होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे इट्स इम्पोर्टेंट किड्स लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स, सब्जेक्ट आपको खुद एक्सपर्ट्स। को मैथ्स का पैशन है तो मैम उसमें कुछ बुरा ही नहीं। हाँ, आपको अगर कोई लेवल पे अटक गए हो आप, तो आप कभी भी कंसल्ट कर हम्म सकते हो मेरे को, आप कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हम्म अब मैं इतना भी बिजी नहीं रहता हूँ कि आपके 15-20 मिनट बात ना कर सकूं। श्योर सर, आई डेफिनेटली। आप रेगुलरली कॉल करोगे तो फिर मैं चार्ज बता दूंगा अपना। बट एक सीए बैठे यहाँ पे तो उसके साथ बोलना पड़ेगा, टाइम इज मनी सर, है कि नहीं? आप रेगुलरली कॉल करोगे, हर हफ्ते में 2 कॉल करोगे तो फिर मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज महीने में एक आध बार कॉल करोगे तो आई विल नॉट माइंड। Sir, I had one quick question. I was thinking my kid is currently in ICSE. ओके। I was thinking, would it be wise to move him to, because he's very well settled in the school. He's enjoying all activities of the school. He's enjoying music, वगैरह, everything. He likes to take part. कौन से Studies, स्कूल में he's है वो? okay. So I was thinking, should I move him to CBSE so that, कौन से स्कूल में है, कौन से स्कूल में है वो? Hiranandani Foundation School, Thane. थाने में ना, ठीक है। ओके। So I was thinking, should we move to CBSE अच्छा, वो so 7th में that, आ रहा है ना अभी ऑलरेडी? sorry sir? ही इज ऑलरेडी कमिंग इनटू 7th, राइट? Yeah, जून में 7 स्टार्ट होएगा। करेक्ट, ठीक है। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है चेंज करने का? वही कि थोड़ा हमारा, मुझे लगता है आईसीएसई थोड़ा हैवी हो जाता है, लैंग्वेजेस होने तो एंड कोई ऑल फर्क दैट। नहीं पड़ता है। सीबीएसई में देखो, मैं आईसीएसई के सीबीएसई की रिलेटिव बता देता हूँ आपको, राइट? गुड दैट यू कम अप विद दिस क्वेश्चन। अगर मैं 10th का 9th 10th का आईसीएसई का पेपर में निकालू ना, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इसमें से 80% तो उसी पैटर्न में आएगा। लेकिन सीबीएसई का, आप ये सीबीएसई 80 मार्क का पेपर होता है, वो 3 घंटा देता है, 3 आवर्स, फिर भी लोगों को कम पड़ता है। ठीक है। सो सीबीएसई क्वेश्चन वाइज कम है, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा है। मतलब आपको सीबीएसई में स्कोर करना, इट इज नॉट एट ऑल इजी। मतलब आप आईसीएसई का देखोगे, आपको अच्छे अच्छे परसेंटेज मिल जाएगा, सीबीएसई वाले आपको नहीं मिलेंगे इतने परसेंट। जबकि सीबीएसई बहुत ज्यादा स्टेट में, बाहर दुबई यूए में सब जगह सीबीएसई चलता है, लेकिन सीबीएसई में स्कोर करना डिफिकल्ट है अनलेस यू हैव। हाँ, आईसीएसई का नो डाउट टॉपिक ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, पोर्शन ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, वो अलग बात है। लेकिन आपके पास सीबीएसई के स्कूल को है नजदीक में, कौन सा स्कूल है आपके पास? डीएवी है और लोकपुरम है, और एक और आई वाज थिंकिंग ऑफ इवैल्यूएटिंग इज नारायणा ई टेक्नो, व्हिच इज अ लिटिल फार, बट एब्सोल्युटली मत जाना, डीएवी मैं आपको एंड खुद बता लोकपुरम रहा आर हूँ। वेरी क्लोज। नारायण टेक्नो में सोचना भी मत। आपका रीजन बता रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस। हेलो। हेलो सर, नारायण टेक्नो ना सोचना भी मत आप, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, पहली बात तो उसमें कुछ आपका बच्चा खेलेगा नहीं, कुछ दूसरा एक्टिविटी करेगा नहीं, कुछ नहीं होगा आपका वहां पे। आपको सिर्फ मैथ्स और साइंस से प्यार है, तब आप नारायण टेक्नो में जाओ। अदर इट इज वर्स देन आईसीएससी। मेरी डॉटर नारायण से है, इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव सीन दैट दे हैव गॉट वेरी गुड बुक्स, बट ओनली स्टडी रिलेटेड, आपको और कुछ नहीं करने को मिलेगा। बैड चॉइस, एटलीस्ट आपके केस में। आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहां पे, और आपको, अगर आपने ले भी लिया 8th में ना, आप 9th में वापस शिफ्ट कर जाओगे। तो नारायण टेक्नो इज नॉट गुड चॉइस। ओके, आपको दूसरे कोई सीबीएसई स्कूल मिल रही है, आपको वहां पे जाना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका बच्चा 10th में कितना मार्क लाया, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? 10th नो सर, ही विल गो टू 7th नाउ। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 10th में कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको? या Sir, अभी right now for boards, I'm not targeting any चलो objective. I 8 just 9 10 want, में आप क्या सोच रहे हो कि उसका 8th में कितना, 7th में कितना मार्क्स आना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज? अभी उसका ATR है सर। मैं डॉली बात कर रही हूँ। आप, दिस क्वेश्चन वाज फॉर मी।
Yeah, for you only. Yeah. See, right now, he is getting around 80 Okay. in ICSE. Are you satisfied? He is sincere with his work, but only जैसे कोई एग्जाम के टाइम टूर्नामेंट वगैरह आ गए. मैंने क्वेश्चन अलग पूछा है मैम. मैंने बोला आर यू सेटिस्फाइड विद हिज मार्क्स? Yeah, I am satisfied that he is sincere with his effort. मैं खाली and- क्वेश्चन पूछता हूँ. बोलो, मैंने आपको समझ लिया. उसका टीटी है, वो म्यूजिक करता है, राइट? मैं अंडरस्टूड, राइट? मैं खाली आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बताया. आर यू हैप्पी विद 75? ऑल्सो ही ड्रॉप्स टू 75. Yes. इफ व्हाट इज योर, मतलब फर्स्ट क्लास आ जाएगा, उसका 60-65% आ जाएगा 10th में, आपको अच्छा लगेगा? यू विल बी हैप्पी? Yes. वेरी गुड. ठीक है. अब आपका ऑब्जेक्टिव है ना, बिकॉज आई अज्यूम, मे बी आई एम रॉन्ग, ही इज वेरी गुड विथ हिज टीटी एंड ही इज वेरी गुड विथ हिज म्यूजिक, राइट? Yeah, and more than that, he is interested and he is happy. Very So good. I आप want him to उसको continue follow that करने as दो, long as he can. उसको फॉलो कर दो. आप हिस्ट्री में जाके ना, जो भी बड़े बंदे हुए हैं, राइट? आप AR रहमान ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, विराट कोहली देख लो. विराट कोहली का कभी कल ही मैंने मार्क्सशीट देखा था, उसका मैप में 50% भी नहीं आया था. मैंने सोचा यार इसी का ट्यूशन मेरे को मिल जाता तो आज मैं भी करोड़ों में खेलता होता. ठीक है. ठीक है. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, कहने का ये मतलब है कि आप जितने भी बड़े देख लो, जो सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल है, उसका एकेडमिक बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको ना उस जगह पे बहुत ज्यादा, और मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुद प्रमोट करता हूँ ये सारी चीज को, कि जहां पे बच्चों का पैशन है, अब उसको टफ टास्क है लेकिन उसको जाने दो उस जगह पे. वो जब दिल से कुछ करेगा ना, मैं 3 days में बोलता हूँ, बोला जो भी करूंगा ना दिल से करूंगा. जो फरहान जाता है फोटोग्राफी करने के लिए, तो सक्सेस. आप मेरे एग्जाम्पल ले लो मैम. आई एम इंजीनियर बाय एजुकेशन. आई हैव डन इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग थ्रू आउट. ठीक है. मैंने अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है एज अ CXO लेवल में, CTO था मैं. लेकिन जो मजा मेरे को अभी आ रहा है ना, बिना पैसे कमाए, ठीक है, स्टिल आई एम एंजॉइंग. आप सोचो कि मैं पिछले 1.25 घंटे से क्लास ले रहा हूँ आपकी. ठीक है. आई एम नॉन स्टॉप, आई एम टॉकिंग, लेकिन मेरे को फिर भी थकान नहीं है. ठीक है. सो ये पैशन का होता है कि आप जब पैशन करोगे. मैं जब आई वॉज इन कॉर्पोरेट, मैं सैटरडे संडे ना क्लास लेता था, क्योंकि मेरी डॉटर थी, सब उनकी क्लासेस था, उसके फ्रेंड के सब जो भी आता था, आई यूज्ड टू टेक क्लासेस. मेरे डैड मेरे को बोलते थे, बोला तू सैटरडे संडे तेरे को छुट्टी मिलती है, तू वहां पर भी ये क्लास लेके 5-5, 6-6 घंटे क्लास लेते, तू आराम कब करेगा? बोला ये मेरा आराम है. जैसे आपने बोला ना कि हम खेल के फ्रेश होके आते, तो हम फ्रेश होते हैं तभी. जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आदमी थक जाता है, लेकिन आपका वर्ड मैंने पकड़ लिया कि हम खेल के आते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, तब हम पढ़ते हैं. जबकि फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे तो थकना चाहिए आपने. करेक्ट है डॉली मैम? Correct. आप चेंज मत करो, मेरी एडवाइस नहीं, आप चेंज मत करो. ठीक है. एज फार एज स्कोरिंग 80% बुरा नहीं है. ठीक है. आप ये देखो कि उसके कौन से सब्जेक्ट में उसको डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, 7th में कोई इशू मोस्ट वाली नहीं आएगा. 8, 9, 10 में मैथ्स भी डिफिकल्ट होगा, इंग्लिश भी डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ डिफिकल्ट होगा. ठीक है. और आपके पास एक ऑप्शन है. गुड पार्ट इन दिस ICSE इज आप कॉमर्स ले सकते हो. यू कैन गो, Okay. यू कैन ड्रॉप साइंस. अगर आपको साइंस नहीं लेना है, आप डिसाइडेड हो कि इसको साइंस नहीं दिलवाना है, आगे जाके उसको इंजीनियर या डॉक्टर या कोई भी साइंस के रिलेटेड कुछ नहीं करना है, आर्किटेक्ट नहीं बनना है, तो आप उसको साइंस ड्रॉप कर सकते हो. आप कॉमर्स ले सकते हो, इकोनॉमिक्स लो, साइकोलॉजी लो, वो सारे इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज आप ऑप्ट कर सकते हो उसमें. Okay, sir. क्योंकि आपका वो एज ऐसा ना मैम, आप तो सेट है अपने स्कूल में, अननेसेसरी. जैसे वी आर ऑल मैरिड, राइट? वी आर ऑल पेरेंट्स. हम बिल्कुल जब तक यहाँ नहीं आता, कोई डिवोर्स लेता है क्या? और मेरे को एक पेरेंट गारंटी, अभी 6-7 जन है हम लोग यहाँ पे, एक जन बता दे कि सब हम आइडियल पेरेंट है, हमारा कभी झगड़ा हुआ है, हमारा वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है, डिफरेंस ओपिनियन हुआ ही नहीं है, कभी हमने एक दूसरे को मुंह चढ़ा ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ. तो आप कुछ बोल लो. जब देवताओं में झगड़ा होता है तो हम तो फिर भी इंसान है. सो जब तक वो सेट हो गया ना, सी बुरा अच्छा स्कूल कुछ भी हो, लेकिन उसका एनवायरमेंट वो सेट है. आई ऑलवेज सेड नोन डेविल इज बेटर देन अननोन फ्रेंड. आपको ये मालूम है कि ये राक्षस कैसे बिहेव करेगा ना, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो. आप अननोन फ्रेंड को आप हैंडल नहीं कर पाओगे. सो आप नई स्कूल में डालोगे, नए एनवायरमेंट में जाओगे. आप अगर जैसे जहाँ पे रह रहे हो, मे बी आप 10, 15, 20 साल से जब भी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप दूसरी कॉलोनी में चले जाओ, आपको एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा. नए एनवायरमेंट, नए नेबर्स, नया लोकालिटी, सब कुछ नया होता है. सो unnecessary, I don't recommend unless until you have very strong reason to do it.
और मेरे को लगता नहीं कि आपका अगर एक्सपेक्टेशन 90% का नहीं है ना, आप यू आर हैप्पी विद 60-70%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका बच्चा कोप अप कर लेगा, कोई इशू नहीं आएगा। और अगर जरूरत पड़े तो आप साइंस ड्रॉप करा दो, कोई इशू नहीं। Okay, sir. Thank you. ठीक है, और किसी को कुछ? गायत्री मैम। Hello, sir. हाँ बोलिए मैम। Yeah, my son is in actually 7th standard ICSE Singhania, ओके and I am actually interested into knowing like he is good in math, ओके but the thing is कि जो क्विक कैलकुलेशंस चाहिए रहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या टेक्निक्स जो रहते हैं, तो that how should I teach him or any maths teacher will teach him? विच ग्रेड ही इज इन? 7. 7th में आ रहा है, ठीक है। देखो 7th में इज ही गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव, मतलब उससे पास्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? Yeah, he's given IMO. आईएमओ हाँ, IMO भी दिया है, ये भी दिया, यूनिफाइड काउंसिल का भी दिया है। यूनिफाइड काउंसिल का भी दिया है, ठीक है। हाँ। ओके, उसका पेपर कंप्लीट होता है, हाँ, पेपर कंप्लीट होता है। क्वालिफाई होता है सेकंड लेवल के लिए? क्वालिफाइंग डिस्टिंक्टिव मार्क्स तो आता है, क्वालिफाई अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ना उसको एक पैटर्न, जैसे मेरे पास कुछ कुछ मैंने बीच में ना, इफ यू आर अवेयर, तो मैंने बहुत सारे मेरे आईपीएम के लाइव सॉल्विंग था, आईएमओ के लाइव सॉल्विंग था, मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स डाले थे। हाँ राइट, मैंने देखा था। हाँ, ठीक है। तो आप अगर रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना, उसमें तो मैंने उसको पैटर्न समझाया कि आपको कैसे अप्रोच करना है, और बहुत ओके। सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने लाइव सॉल्व किए बच्चों के साथ, और समझाया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कौन सा approach करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट नहीं करना है। बट ऑनेस्टली बोलूं, एक सेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको ग्रास्प करना, क्योंकि रिपीटेड होता है। मैं कम से कम 3 महीने लेता हूँ आईपीएम के लिए, फेब्रुवरी से चालू होता है, अप्रैल एंड तक रहता है, जब मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ, उनको ट्रिक्स बताता हूँ, रिविजन कराता हूँ, उनको टाइमर लगा के उनको पेपर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। उनको ट्रेन करता हूँ कि आपको टाइम को कैसे इंपॉर्टेंट देना है। ओके। तो मैंने जैसे बोला कि आपको अगर आप करा रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज है आप उसको सॉल्व कराओ, ठीक है। हाँ। जब उसको कोई भी टास्क करने बैठे हो, उसको हाँ। टाइम मॉनिटर करने लगाओ कि तुमको कितना टाइम, ओके। ठीक है। और जहां पे उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं कैसे फास्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का बोला है, 7 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, राइट। उसको आप शॉर्टकट से आप करने जाओगे तो आपको 30 सेकंड लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल मेथड से करने जाओ आपको 3 मिनट से ज्यादा लगेगा, ओके। ठीक है। सो बहुत बार ये केस भी होता है जहाँ पे वो ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए, जब कंसेप्ट में आप स्ट्रांग होते हो। बहुत सिंपल चीजें हो सकती है, या तो जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, जैसे उन्होंने क्वेश्चन एक पूछ लिया कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी एडेड, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 11 1/4 प्लस 18 3/5, ओके। और उन्हें पूछ लिया कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन ऐड करूं तब ये होल नंबर बन जाए। अगर ये सिंपल क्वेश्चन है, नीचे कुछ ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4, ओके। अब वो बोलेगा कि मैं ऐसे कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करूं तो वो होल नंबर बन जाएगा। आपको कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए? मिनिमम 4 मिनट, 3 से 4 मिनट से लगेगा। सॉरी, 3 से 4 मिनट से लगेगा। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ओके। ठीक है। अभी ये मोनी सर सॉल्व करेंगे इसको, मोनी सर, इफ मोनी सर आप हो? हाँ सर, देख रहा हूँ सर। बताइए सर, इसको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। 30 सेकेंड, ओके। आंसर भी बता दो, आंसर 9/10 है। आप देखो सर, मैंने क्या बोला, मेरे को एक फ्रैक्शन ऐड करना डेसिमल, है। हाँ डेसिमल वाला ऐड करना है, तो 0.1 आ रहा है लास्ट में, तो 0.9 ऐड करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। पॉइंट वन तो ये देना ही नहीं है, ठीक है। ये देखो 3/4 1/4 आउट हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया, हाँ। अच्छा, होल नंबर मेरे को काउंट ही नहीं करना, मेरे को करना ही सोचना नहीं है, पड़ रहा है। तो करेक्ट। क्या 1/3 और ये, तो मैंने सीधा एलसीएम लिया यहाँ पे 5
प्लस 6/10 कर दिया, तो मेरे को 11/10 आ गया। तो मेरा इसमें से एक होल निकल गया 1/9, मैंने 1/10 आ गया, मैंने 9/10 कर सही है, सही है। इट इज इवन लेस देन 30 सेकेंड्स। लेस देन 30 सेकंड, क्योंकि मेरे को खाली ये देखना था जब आए, मेरे को सिर्फ चेक करना डिनोमिनेटर कहाँ पे मैच हो रहा है, दैट्स इट। और नॉर्मली क्या होता है, सी यहाँ पे लोग बड़े बड़े नंबर दे देंगे, तो मैम ये ट्रिक होता है, अगर आप ये करोगे, आप 4 से इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों का। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 875 मल्टीप्लाई बाय 189 इज इक्वल टू समथिंग, Right. I'll just give you something, they give the answer, correct? So suppose मैं बोलता हूँ, मैं I'll use the calculator, बोलो 875 89 165 375, करेक्ट। उन लोग क्या करेंगे, 18.9 पॉइंट ए इज इक्वल टू 165.this। अब ये नंबर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, अब बताए कि 116.5375 डिवाइड बाय 8.75 क्या आएगा। अब आपको सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करना है, 1.89, हाँ करेक्ट। अब 1.89 पे पहुंचे कैसे? सर, आंसर तो 189 ही होगा। और Correct. यहाँ पे डिनोमिनेटर तो वो वाले नंबर से सेम है, कोशेंट में एक डिवाइड बाय 10 हो गया, तो ये भी डिवाइड बाय 10 कर दिया। इसकी जरूरत ही नहीं है सर। अब आप देखोगे, मैं तो ये सही। तो, ये क्या डेसिमल है, इज लेस देन 1 है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ये भी लेस देन 1 है, इसका भी मीनिंग नहीं है। क्या है, 16 डिवाइड बाई 8, अराउंड 2 आना चाहिए आंसर। या तो 2 आएगा, 1.89 आएगा, 18.9 आएगा, या 0.189 आएगा। तो आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा मेथड है करने का। अब आप देखो यहाँ पे क्या, 2 डेसिमल प्लेट, यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट आएगा। अब जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, 4 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डिवीजन है ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर तेरा सब्ट्रैक्ट होगा, 1.89, 2 करेक्ट। डेसिमल पॉइंट आएगा, राइट। सो देयर आर मेनी सच कंसेप्ट जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूँ ना, ये तो हम जाएंगे तो रात रात भर निकल जाएंगी, मेरा डिस्कशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दिस, हेलो शुभ मैम, हेलो, शायद चले गए मैम, हेलो, हाँ, Yes, sir. Yes. या यू गॉट दिस पॉइंट मैम। सो Yes, yes. बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे लिमिट है। जो भी मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स आप पढ़ाओ। वैदिक मैथमेटिक्स यूट्यूब पे वीडियो चैनल्स होती है, ठीक है, वैदिक की बहुत सारी बुक्स होती है, ठीक है, आप हाँ. पढ़ाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं है, नहीं, and what about the practice? Which book should we use for practice? फॉर वैदिक मैथमेटिक्स और नॉर्मल मैथ? No, normal math. नॉर्मल मैथ में अगर आईसीएससी तो आप सलीना यूज करो, आर.एस. अग्रवाल यूज करो, या कंपोजिट मैथ्स है वो यूज करो। आपके पास और एक है फ्रैंक है, विच इज योर निर्मल शास्त्री का है, ठीक है। आर डी शर्मा यूज करो, ठीक है। ये सारी अच्छी बुक्स है, मतलब अगर आर डी शर्मा बाइबल है, अगर आपको अच्छा. आर डी शर्मा अगर 7th 8th में मिलता है तो आप आर डी शर्मा फॉलो करो। अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छा है तो आर डी शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू प्रैक्टिस फ्रॉम। Okay. बाकी अदरवाइज आपके स्कूल में जो मोस्टली आर.एस. अग्रवाल और सलीना, दो में से, हाँ, आर.एस. अग्रवाल यूज करते हैं वो तो. करेक्ट, आर.एस. अग्रवाल होता है या तो सलीना होता है, दो में से एक ही यूज होता है। कोई कोई स्कूल फ्रैंक भी यूज करता है, ठीक है। Okay. ये सारी अच्छी बुक्स है, आप सारी यूज करो, कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज सब कुछ प्रैक्टिस करो, और सेकंडली बहुत मैथोडोलॉजी का मत जाओ। दे All शुड नो right. द ट्रिक्स, दे शुड नो द शॉर्टकट्स, हाँ, हाँ. वो कंसेप्ट से ही आएगा। तो कंसेप्ट से Okay. तो ये सारी चीजें आप पढ़ाओ। या अगर आपको ऑफलाइन, मेरे पास सिंगाने के सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब ऑल्दो आई एम स्टेइंग इन बोरीवली, हाँ, कॉलेज हाँ. काफी नजदीक हूँ मैं, लेकिन मेरे सबसे हम्म. ज्यादा स्टूडेंट सिंगाने आके हैं। Okay. सबसे ठीक ज्यादा है. मतलब मेरे टॉप लेवल के जो स्कूल है वो सिंगानिया है। हाँ. अच्छा. नाइस. सेकंड सेकंड मेरा है गुंडेचा के, गुंडेचा के है। ओके. फिर कुछ कुछ है, जैसे इको मॉडल के भी है, दुबई के भी कुछ स्टूडेंट है। मेरा दुबई ऑफलाइन, मतलब आउट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा बेस मेरा दुबई यूएई में है। मेरे 10% स्टूडेंट दुबई यूएई से भी है, फिर कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई जापान से भी है। बट एज अ आईसीएससी का बेस सिंगानिया का सबसे बड़ा है। सो अच्छी बुक है, उनके कनेक्शंस अच्छी बुक है, उनकी जो बुक आती है उनके पेपर्स भी अच्छे होते हैं। तो प्रैक्टिस कराओ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप उसको ट्रिक पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो कंसेप्ट के ऊपर, दैट विल हेल्प।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, द सेशन वाज इंटरेस्टिंग। श्योर श्योर, ठीक है, चले। सो आई होप आई आंसर एवरीवन। ठीक है, सो अभी बाकी कुछ है तो आप मेरे को फोन पे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चले, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।